Hi everyone. Thank you. Hi everyone. Very very good evening. Good evening, sir. Wonderful. Very nice. काफी सारे हमारे participants हैं यहाँ पर. So nice to see everyone out there. Wonderful. Who are the ones? Yes, please everyone. Yes. Who are the ones who are attending for the first time? Please raise your hands. जो पहली बार आए हैं SAG learning session में. Okay, Netra, Preeti, and who else is there? Akshita. Wonderful. Okay, that's very nice. Shweta Bhargav. Okay, wonderful. Hi Shweta. Hi, कहीं से तो नॉइज आ रही है किसी के पास से. कौन है? ओके. एक सेकेंड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, लतिका. अच्छा लतिका, आप भी फॉर द फर्स्ट टाइम यूर अटेंडिंग. वंडरफुल. हाय प्रीति मौर्य. Hi, sir. हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग. Good evening, sir. वंडरफुल. वेलकम टू SAG लर्निंग. Thank you, sir. क्या लगता है आज क्या होने वाला है? I don't know. Like I'm attending for the first time, so I'm Okay. curious to know. Wonderful. Introduce yourself. My name is Preeti. I stay in Koparkhene. I'm a student. I am pursuing post-graduation in media and event management currently. Wonderful. Very nice. Thank you. Yeah. Thank you. Hi Netra. Hi sir, good evening. आप दोनों दोस्त हैं क्या? हाँ. आप दोनों साथ साथ में बैठे हुए साथ बैठे अलग हैं, अलग. yes. हाँ, आई कैन सी आधा यहाँ पर आधा वो कट रहा है ऐसे बीच बीच में. अच्छा, वंडरफुल. वेरी नाइस. हाय नेत्रा, आप भी बताएं अपने बारे में. Yeah, so my name is Netra Nair and I'm currently pursuing MBA in HR and I stay in Airoli, Navi Mumbai. Wonderful. Very nice. Welcome to SAG Learning. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. हेतल जी, आप भी हैं यहाँ पर? Yes, sir. Finally, very good to see you. Yeah, after a long time. आपकी सुबह सुबह स्टोरीज तो दिखती रहती हैं मुझे. Yes, वो कंटिन्यू है सर. बहुत अच्छा लगता है. That is. हाँ. there. कितने दिन हो गए आपको? Around 89. अराउंड 89. हाँ, इसलिए मैं Yes, जानना चाह रहा था yes. क्योंकि मुझे लगा आपके इतने दिन तो हो गया है. कीप सिंग विदाउट फेल. आपकी स्टोरीज आ जाती है, मैंने देखा. Thank you so much. But that is incredible. That's really really nice. 89 days to wake up early in the morning, sometimes at 4, sometimes at 4:30. Everyone please mute yourself when I'm talking. एक सेकंड. कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा, okay. So it's incredible. बहुत अच्छी बात है. Yes, thank you. So many congratulations. Yes, thank you so much. That's really nice. काफी Wonderful. अंदर से काफी अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. स्टार्टिंग में नहीं इतना कुछ लग रहा था. But it's wonderful. Very nice. Thank you. Thank you so much. Hi Latika. Please switch on your video. अच्छा, एक किसी का वीडियो है जहाँ पे पंखा दिख रहा है मुझे सिर्फ ऊपर. कौन है? प्रीति जी? Latika and Preeti. Hi, Latika. Can you switch on your video? Hi. Hello sir. Hi. काफी नॉइज आ रहा है. अभी ठीक है. हाँ जी. Hi. How are you? I'm fine sir. Wonderful. Can you please introduce yourself? Sir, my name is Latika Kashyap. I'm from Kota, Rajasthan and I'm pursuing MSc Nursing. Okay. Wonderful. Okay. Thank you. Thank you so much. Preeti. Who is Preeti? Hi. Latika, please mute yourself. Thank you. Hi, Preeti. हाँ जी, कौन है ये प्रीति जी? क्योंकि मुझे दिख तो कुछ नहीं रहा, मुझे इतना फैन दिख रहा है. अच्छा प्रीति जी, आप पिछले सेशन में भी थे, राइट? प्रीति जी, हाय. Hello sir. हाय, आप पिछले सेशन में थे, राइट? Yeah. Not wrong. Wonderful, very nice. Wonderful. All right. Okay, हमारे सिंगापुर के पार्टिसिपेंट भी हैं. हाँ जी, पूजा पारेख जी, कैसी हैं आप? I'm good. Finally, I got an internship. Congratulations. Finally. Thank you. After very long. After 6 months. After 6 months, but I'm happy to hear that. So congratulations. Wonderful. And welcome to SAG Learning. Thank you. Thank you. Hi Akshita, how are you?
Hi, I'm good. This is the first time you're attending as well? Yeah. Okay, wonderful. Thank you. Thank you so much. You want to introduce yourself? Please do that. Yeah, I'm Akshata Todkar. I live in Airoli only, and I'm a Okay. third year veterinary student. Okay, wonderful. That's quite interesting. Thank you. Thank you so much. Hi, Shweta Bhargav. Hello, sir. Shweta ji. My, Hi, very, very good evening. yeah. My name is Shweta Bhargav, and I'm a fashion designer by profession. So I have a Wonderful. brand name, Shweta Bhargava. Mm-hmm. And right That's now I'm wonderful. cooking, so I specifically asked that I can't switch on my I camera. understand. No So problem. I'm No worries at all. No Thank you, sir. worries. Thank Thank you you. so much. Okay, बाकी सब तो हमारे जाने पहचाने से बहुत सारे participants हैं. So it's nice. I'm happy that you guys are here. Welcoming to SAG Learning Session. Today is a very interesting session. आज का session थोड़ा सा लंबा होगा. I think it will extend till 8:20 or something, or maybe around that. क्योंकि कुछ important चीजें हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है. तो बात करेंगे तो शायद चीजें समझ में आएंगी. जितनी समझ में आएंगी उतनी clarity आएगी. So wonderful. 11 ways to become mentally strong. ठीक है. So सबसे पहले पेन डायरी पेपर सब रखें अपने साथ so that you can keep writing. Writing is important. And बाद में फिर हम before we end the session we will also culminate everything. So everyone please keep writing. लिखना जरूरी है. लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातें जो हम लिख रहे हैं उसकी सच्चाई हमारी आत्मा में उतरती है. वरना सिर्फ ऊपर की बात तो ऊपर से निकल जाएगी. फिर आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए अच्छा लगेगा. उसके बाद ऐसा लगेगा अरे फिर वहीं वापस आ गए जिंदगी के अंदर. ठीक है. सो जस्ट कीप राइटिंग इट डाउन. एंड ऑल्सो जो भी आप अपने हाथ से लिखते हैं कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व आपके अंदर समाना शुरू हो जाता है. सो जस्ट कीप राइटिंग एंड देन ऑल्सो वी विल टैली इट बिफोर वी एंड द सेशन. ओके. Wonderful. So 11 ways to become mentally strong. Mentally strong. चलो पहले mentally strong से पहले चलते हैं physically strong की तरफ. थोड़ा सा क्लैरिटी होगी. हम mentally strong की तरफ नहीं जाते. पहले समझते हैं कि physically strong होने का मतलब क्या है. क्योंकि ये क्लैरिटी आ जाएगी तो ये भी समझ में आ जाएगा कि mentally strong होने का क्या मतलब है. क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ कनेक्टेड हैं. So कोई बताएगा what is the meaning of फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी तराली जी बताइए. 1 सेकंड पूजा. फिजिकली स्ट्रॉन्ग का मतलब है लाइक फिजिकली हेल्दी. योर ऑल ऑर्गन्स आर हेल्दी. you're capable of doing it. You're capable of doing everything of your own. ओके. आप आसपास है लेकिन करेक्ट नहीं है. और कोई बताएगा सर? रुकते हैं जरा. आसपास है. हाँ जी 1 सेकंड पूजा बताइए. फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? जब हम किसी को कहते हैं कि फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है? तराली जी प्लीज म्यूट. थैंक यू. हाँ जी पूजा बताइए. Having a healthy diet, being in a good environment, in a physical good. अरे किधर जा रहे हो? अगर हम किसी को कहते हैं फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग है तो वो जो खाता है वो तो उसके अंदर जाता है. वो अलग है. whatever he's eating that's his choice, right? वो हेल्दी खा रहा है या अनहेल्दी खाता है. To do exercise every day. नहीं. फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि ये इंसान फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब क्या? अगर हम किसी ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना? अच्छा ओके. ज्यादा हो गया. दारा सिंह का नाम सुना है? खली का नाम सुना है? द ग्रेट इंडियन खली. हाँ श्रेया का हाथ आ गया. खली का नाम सुना. चलो वेरी गुड. खली, दारा सिंह, WWF के या WWE के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम तो सुना ही होगा. करेक्ट. सबने सुना. वंडरफुल. तो अगर क्या हम उनको कह सकते हैं कि वो लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं? कह सकते हैं ना. क्यों कह सकते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग है? सोचो जरा. क्या है उनमें? क्या दिखता है आपको? अच्छा श्रेया बताओ. Yeah, so that they are capable of doing physical, मतलब taking physical actions. मतलब they can run, मतलब बहुत तेजी से.
फिर मतलब कुछ हैवी चीज उठा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, आगे बोलो आगे बोलो। थोड़ा सा एक शब्द मिसिंग है। आप हैवी चीज उठा सकते हो, आप भाग सकते हो, आप दौड़ सकते हो, समझ में आता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग का मतलब, चलो अगर सिंपल तरीके से कहें, 1 सेकेंड पूजा, एक वर्ड मिसिंग हो रहा है। सोचिए जरा, जब हम किसी को कहते हैं कि कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, चलो किसी ने कहा, श्रेया ने कहा हम हैवी चीज उठा सकते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड मिसिंग है। बताओ वो वर्ड क्या है? प्रीति बताइए। सर बॉडी बिल्डर। अरे बॉडी बिल्डर तो फिजिकली स्ट्रांग है ही, लेकिन जैसे बॉडी बिल्डर भी कोई भारी से भारी चीज उठा सकता है, करेक्ट? उसके साथ एक वर्ड मिसिंग है, भारी से भारी चीज उठा सकता है डैश। बताओ वो डैश क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड है। रुको रुको रुको, एक एक करके। हाँ तेजस्वनी बोलिए। स्ट्रेंथ नहीं, और बताओ। किसने हाथ खड़ा किया था? मीनाक्षी जी बताएं, बाकी सब म्यूट। Having a healthy body. नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। मैं यहां से जाता हूं एयरपोर्ट, करेक्ट? तो जब तक गाड़ी नहीं आती है, चाहे मैं कैब में जाता हूं हाइपोथेटिकली, तो मुझे अपने घर से 2 सूटकेस उठा के लेके जाने हैं, और लिफ्ट खराब हो गई तो मैं स्टेयर से उठा के लेके जा रहा हूं नीचे, करेक्ट? अब यहां से नीचे ले जाने का जो प्रोसेस है, 3 फ्लोर नीचे ले जाने का जो प्रोसेस है, ओके सो आई स्टे ऑन द 3rd फ्लोर। अगर आपको नहीं पता तो पता लग गया होगा अब तक। सो 3rd फ्लोर से नीचे ले जाने का जो 2 सूटकेस का जो प्रोसेस है, करेक्ट? अगर मैं उस दोनों सूटकेसेस जिसमें कपड़े सब चीजें भरे पड़े हैं, भारी से भारी सूटकेस हैं, 15-15 किलो के सूटकेस, अगर मैं उठा के लेके जा रहा हूं, तो क्या मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं कि नहीं हूं? अगर मैं उठा सकता हूं तो मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं, करेक्ट? इसमें एक शब्द आता है, एक है कि मैं ऐसे 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 करके उठा के लेके जा रहा हूं, उठ ही नहीं रहा, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तो क्या उसे फिजिकली स्ट्रांग बोलेंगे? या फिर अगर मैं ऐसे उठाता हूं आराम से, एफर्टलेसली, उन दोनों सूटकेस को उठा के ले जाता हूं और नीचे रख देता हूं, तो उसे कहते हैं फिजिकली स्ट्रांग इंसान। मतलब भारी से भारी चीज को जब आप एफर्टलेसली उठा सकते हैं, तो उसे कहते हैं फिजिकली स्ट्रांग इंसान, करेक्ट? या उसे कहते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ। एफर्टलेसली इज द वर्ड। उठा तो हर कोई लेता है, कोई ऐसे उठाता है, कोई ऐसे उठाता है, कोई ऐसे उठाता है, लेकिन आराम से उठाना, एफर्टलेसली उठाना, उसे कहते हैं फिजिकली स्ट्रांग इंसान, फिजिकल स्ट्रेंथ। इसी के साथ एक और चीज आती है। एक तो हो गया कि हम भारी से भारी चीज को उठा सकते हैं एफर्टलेसली। क्या फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी इंटरनल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो? कि मतलब आसपास कोई बीमारी फटके नहीं है हमारे आसपास, करेक्ट? जब कोई फिजिकली स्ट्रांग किसी को हम कहते हैं, कोई हेल्दीली स्ट्रांग कहते हैं, तो उसका मतलब यह उसकी उसकी फिजिकल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से it doesn't get succumb to viral and other small diseases that keeps happening to everyone, correct, on day to day basis. तो उसकी इम्यूनिटी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, ओके? ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया कि एक तो स्ट्रांग इम्यूनिटी, दूसरा picking up any heavy objects physically without effort, मतलब effortlessly. Clear? Now, अब इसी को हम साथ में तालमेल करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ से। अब एक है फिजिकल स्ट्रेंथ, एक है मेंटल स्ट्रेंथ। अब आप मुझे बताओ, ये 2 चीजें मैंने आपको दे दी, अब मेंटल स्ट्रेंथ को इससे कैसे हम जोड़ सकते हैं, ये बताओ। अगर फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब है that very easily you can pick up any stuff, any heavy stuff effortlessly, plus you have a strong immunity so that no diseases can come near you, no physical diseases. तो इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होने का क्या मतलब हो, अगर इससे रिलेट करेंगे तो सोचो। तरारी जी बताएं। Facing any unfavorable situation without facing any unfavorable situation without effortlessly. Facing any unfavorable situation effortlessly. Yeah. Effortlessly, correct? Yeah. Kind of, actually. That is also a good possibility and a probability. कि facing any unfavorable situation, मतलब facing any difficult situation, facing any problem in your life
effortlessly, और अगर मैं इसके साथ एक लेयर और जोड़ दूं तो मतलब amidst every difficult situation of your life, you don't see it as a difficult situation, you see it as a solution oriented situation. मतलब मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का आप मिनटों में हल निकाल सकते हैं, मतलब effortlessly हल निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब you are mentally strong. करेक्ट? कि मतलब मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है, लेकिन आप उसका मिनटों में, चुटकियों में effortlessly हल निकाल सकते हैं. और अगर मैं इसी के साथ दूसरा लेयर जोड़ूं, जब हम कहते हैं कि हमारी फिजिकल इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिजिकल डिजीजेस नहीं लगती, ऐसी हमारी मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो ओवरथिंकिंग, नो पास्ट बैगेजेस, एवरीथिंग क्लेंस्ड, ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं जो हमें अटका के रखती हैं मेंटली, वो सारी की सारी परेशानियां हमारे आसपास नहीं पटकेंगी. Correct? They will not come close to us, they will not cause harm to us, and they will not trouble us because we are mentally very strong. So no stress, no anxiety, no depression, no stupid thoughts, no any emotional baggages, no mental cloggages, nothing comes close to you because everything is absolutely cleansed here. जैसे हमारी physical immunity के समय सब चीजें strong और cleanse रहती हैं. Correct? The body is working beautifully and in a very cleansing manner, तो इसलिए आसपास की चीजें तंग नहीं करती हैं. इतना क्लियर है? बस इतना ही सिंपल है कि फिजिकल इम्यूनिटी इस तरह से, सॉरी फिजिकल स्ट्रेंथ ये होती है और मेंटल स्ट्रेंथ ये होती है. तो आज हम मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे. अब मुझे बताएगा कोई, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी बिकम मेंटली वीक? क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे कि इन वजहों से हम मेंटली वीक होते हैं, पहली बात, और दूसरा मेंटल वीकनेस के सिम्टम्स क्या है, तो हम काम कर पाएंगे अच्छे से कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू टू बिकम मेंटली स्ट्रांग. हो सकता है हमें ये भी ना पता हो कि हम एक्चुअली मेंटली वीक हैं अभी. एवरीवन प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. हो सकता है हमें ये भी ना पता हो कि इस समय हम मेंटली वीक हैं. करेक्ट? अनुप्रिया, म्यूट योरसेल्फ बेटा. तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि हम मेंटल, चलो पहले सिम्टम्स बताऊं तब समझ पाओगे कि हम मेंटली वीक हैं कि नहीं हैं. उसके बाद जानेंगे कि कॉजेस क्या हैं. चलो सिम्टम्स बताते हैं. What are the symptoms of becoming mentally weak? Yeah, what are the symptoms which may tell us that, listen, we are mentally weak at the moment? Number one, when you begin to self-doubt yourself in every situation of your life. That means you are mentally weak at the moment. Number two, when we get into self-victimization and self-pity mode. जब हम खुद को बेचारा समझने लगते हैं जिंदगी के अंदर. We get into self-victimization and self-pity owing to any shame, any guilt, any past experience. हो सकता है हमारी जिंदगी में कोई इमोशनल ट्रॉमा आया हो, कोई गिल्ट आई हो, कोई शेम आया हो, कोई फिजिकल इमोशनल मोलेस्टेशन आया हो, जिसकी वजह से जो भी हमारी जिंदगी में हुआ है वो बुरा हुआ है और हमने अपने आप को उस बुरे इंसिडेंट के अंदर अटका लिया है. एंड एट द मोमेंट वी फील सेल्फ विक्टिमाइज्ड एंड सेल्फ पिटी. हमें समझ में नहीं आता बट हम अपने आप को कहीं ना कहीं बेचारा महसूस करते रहते हैं कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा. ओके, दैट बेसिकली मीन्स यू आर एट द मोमेंट मेंटली वीक. नंबर थ्री, जब आप कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. छोटी छोटी जिंदगी की चीजें, छोटी छोटी चीजें, दाल में नमक क्यों है कम, उसकी वजह से भी आपको गुस्सा चढ़ जाता है. करेक्ट? पानी ऐसे क्यों नहीं भरा, पानी ऐसे क्यों भरा, उसमें भी गुस्सा चढ़ जाता है. When small trivial incidents of life starts to agitate you, irritate you, upset you, that basically means at the moment you are mentally weak. Okay? Number four symptoms. जब आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, that means self confidence और self esteem, जिस समय लो है, अगर वो लो है, अगर अपने आप में विश्वास नहीं है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अगर कमजोर महसूस होता है तो मतलब आप इस समय मेंटली वीक हैं.
अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, हर डिसीजंस के लिए किसी की सलाह मांगते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कीप डाउटिंग योरसेल्फ and having low self-confidence. That basically means at the moment you are mentally weak. और क्या symptom होता है? When we get easily influenced by others. जब हम बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है किसी भी चीज का जिंदगी में. We keep asking for others' opinion for any decision making, and the moment somebody says something, we constantly and easily gets influenced by them because we have no standpoint of our own, because we have low self-confidence and we have low self-esteem at the moment. Okay? और जब हम खुद को जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन हो, चाहे वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो, हम खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं. करेक्ट? ऐसे बहुत सारे लोग खुद को महसूस करते हैं कि हम बहुत हेल्पलेस हैं, हमसे कुछ होगा नहीं, हम खुद की ही मदद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और की मदद क्या कर पाएंगे. So when we start to feel that we are helpless in our life, that basically means you have become mentally weak at the moment. When we have, this is the next one, when we have fear of committing mistakes, जब हमें डर लगता है गलतियां करने से, मतलब ये है कि हमें fear of failure है. अगर आपके अंदर fear of committing mistakes है या fear of failure है, that basically means that you are mentally weak at this moment. तो अगर आपके अंदर डर है, घबराहट है कि गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगी तो डांट पड़ेगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो that basically means at the moment you are mentally weak. Or when you constantly complain, when you constantly backbite, when you constantly crib, when you constantly gossip, when you constantly bitch around anyone or everyone behind their back, that basically means you are mentally weak at the moment, because your whole perspective is not about looking at the better side of life, but constantly creating, complaining and cribbing. So अगर आप constantly complaining करते रहते हैं, constantly crib करते रहते हैं situations के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, that basically means you are mentally weak. Next, when you are constantly looking for instant gratification in life, जैसे online shopping, immediate pizza, immediate Amazon shopping, जब आपको जल्दी से जल्दी 15 मिनट के अंदर सब चीजें चाहिए, that basically means you can be easily tempted. At that point of time, you can easily get distracted by anyone and everyone around you. That basically means आप बहुत mentally weak हैं, क्योंकि कोई जरा सा ल्योर करेगा और आप खींचे चले जाएंगे उसकी तरफ. आपकी अपनी कोई standing नहीं रह पाएगी. Okay? And last but not the least, when you apply or are determined to apply a shortcut approach in life, that basically means कि अगर हमें लगता है कि हम हर जगह पे शॉर्टकट अप्लाई करें, कुछ लोग होते हैं जो हर जगह पे तिकड़म लड़ा के शॉर्टकट्स अप्लाई करने की करते हैं कोशिश. So whenever if you have an easy shortcut approach in life, that basically means you don't want to work hard for anything, you don't want to have a long-term gratification for it, you don't want to have a long-term reward for it, you just keep finding a smallest shortcut approach and shortcut way in order to satisfy yourself instantly. That basically means you are mentally weak. अब आप मुझे बताओ why या what are the reasons we are, इतना समझ में आ गया कि मेंटल वीकनेस क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो ये हैं सारे के सारे सिम्टम्स मेंटल वीकनेस के. अब मुझे बताओ व्हाट आर द रीजंस व्हाई हैव वी बिकम मेंटली सो वीक इन आवर लाइव्स. इतना तो समझ में आ गया कि हम मेंटली थोड़ा सा वीक हो गए, इमोशनली वीक हो गए, क्योंकि ये काफी सारे सिम्टम्स मैच करेंगे जिंदगी के अंदर. किसी का कुछ मैच करेगा, किसी का कुछ मैच करेगा, लेकिन मैच तो करेगा ही करेगा. तो अब सोचो जरा कि हम मेंटली एक्चुअली वीक हो क्यों गए हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं हमारी मेंटल वीकनेस के. जब रीजन समझ में आ जाएंगे तो हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. बताओ. हाँ जी, व्हाट आर द रीजंस
सोचो सोचो, हम मेंटली वीक तो हो चुके हो, लेकिन ये तो बताओ कि रीजंस क्या है, किस वजह से हो चुके हो, कुछ तो हुआ होगा। हाँ जी पूजा बताओ। Competition, as you always want to be first, and when people कंपटीशन से ज्यादा कंपैरिजंस की वजह से हम बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे, इन कंपैरिजंस के चक्कर में फंस रहे हैं, और वो कंपैरिजंस में हम अपने यूनिक पोटेंशियल को, अपनी स्ट्रेंथ को भूलते चले जाते हैं। और एक कॉमन डिनोमिनेटर के बेसिस पे, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका स्कूल है, चाहे वो आपका कॉलेज है, चाहे वो आप घर है, चाहे आपकी कॉलोनी है, चाहे आपका घर है, हम उस डिनोमिनेटर के बेसिस पे एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और उसके अंदर उलझते चले जाते हैं। सो वी लीव आवर यूनिक पोटेंशियल, we forget our unique talent, and what we do is we start comparing ourselves to others. So comparison की वजह से हम मेंटली वीक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम अब अपनी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान नहीं देते, हम वीकनेस में चले जाते हैं। ओके वंडरफुल। एनीवन एल्स? और किस वजह से हम वीक होते जा रहे हैं? तो तराली जी बताएं। Because of your unfavorable environment, unfavorable situation. Sorry, दोबारा बोलिए। Unfavorable situation, unfavorable environment. एक सेकेंड। अनफेवरेबल सिचुएशन, अनफेवरेबल एनवायरमेंट, क्या हम इसको थोड़ा और बेटर वर्ड दे सकते हैं कि हो सकता है हमारी कंडीशनिंग और हमारा एनवायरमेंट बहुत नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम मेंटली वीक हो गए हैं। दैट मींस वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिव एनवायरमेंट, और वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव कंडीशनिंग इन आवर लाइफ। करेक्ट? क्योंकि जिस तरह का एनवायरमेंट होगा वैसे ही बनते चले जाएंगे। अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव होगा तो आपको एनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा। एनवायरमेंट नेगेटिव होगा तो क्रिटिसाइज और डिस्करेज करेगा। एंड वी बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ आवर नेगेटिव कंडीशनिंग। दैट इज व्हाई वी बिकम मेंटली वीक। हाँ जी कॉम्पल, और बताएं रीजंस। एक सेकेंड, अंकिता आपने भी हाथ खड़ा किया? अच्छा 1 सेकेंड। हाँ जी कॉम्पल, यस टेल मी। Good evening, sir. Very, very good evening. Tell me. Firstly, congratulations on the release of Sher Ka trailer. Thank you so much. That's very kind of you. Thank you. Sir, one of the reasons of my personal weakness, I feel, is expectation, wanting to fulfill expectations of the others and not thinking about what we expect from ourselves and what we are capable of fulfilling ourselves. So putting others in front of yourself probably can be one. Not paying attention or not valuing, respecting yourself. Not valuing, respecting yourself. और इसी के साथ जुड़ा हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा वैलिडेशन, एप्रिसिएशन, अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट दूसरों से मांग रहे हैं, इसलिए हम दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं, खुद के लिए कम करते हैं। खुद पर कम ध्यान देते हैं, दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके लिए ज्यादा करेंगे तो हमें लगता है कि हमें उनसे खुशी मिलेगी। सो अपनी खुशी का आधार दूसरों के ऊपर डाल देना और समझना और महसूस करना कि उनके जरिए हमें खुशी मिलेगी। उनके जरिए कभी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी को आप शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो, खुशी को किसी से छीन थोड़े ना सकते हो। So not valuing yourself, not respecting yourself, and depending upon others for everything in your life can make you mentally weak. Because what happens is, फिर आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाएगा, और जब दूसरे के हाथ में चला जाएगा तो फिर ऐसे ऐसे वो रिमोट कंट्रोल चलाता रहेगा और आप नाचते रहोगे उनके हिसाब से। तो फिर अपना स्टैंड पॉइंट कभी नहीं रहेगा। फिर उनको खुश करने के चक्कर में जो वो कहेंगे वही आपके लिए सही होगा। अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अपनी कोई सजेशन नहीं है। बिकॉज यू विल ऑल्सो बी वेरी वेरी स्कैर्ड कि कहीं कोई मेरी बात किसी को चुभ ना जाए, कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर वो चुभ गई और हर्ट हो गई और उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? ओके वंडरफुल, थैंक यू कॉम्पल। एनीवन एल्स? अंकिता आप बताएं। Sir, it could be overthinking. Overthinking is not the reason we become mentally weak. Overthinking अगर है तो किस वजह से overthinking वो important है वो बताओ। एक लेयर नीचे जाओ। Yeah, in my case actually I have resigned from my job, so मुझे पता नहीं अभी आगे। I have still not got a job and nothing I am doing right now. I am on a notice period. So somewhere I went in a self-doubt zone and I have started like
मैंने छोड़ तो दिया है, पर अभी क्या लाइक so one layer which is nice. So basically overthinking is happening because of the fear of the unknown. Yes. कि कल क्या होगा, कि जॉब तो मैंने छोड़ दिया है, अब आगे क्या होगा, क्या दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. करेक्ट. सो फियर ऑफ अननोन कीप्स मेकिंग यू मेंटली वीक. फियर ऑफ अननोन की वजह से ओवरथिंकिंग होती है, और ओवरथिंकिंग की वजह से हम धीरे धीरे, जैसे हमने कहा, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, वो सारी हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही हैं, कमजोर कर रही हैं, और हम मेंटली वीक हो रहे हैं. सो फियर ऑफ अननोन बेसिकली मेक्स अस मेंटली वीक. वंडरफुल, थैंक यू. तेजस्विनी, आप बताएं. Then we come to Akshata. बाकी सब म्यूट. थैंक यू. हाँ जी तेजस्विनी बोलिए. हाँ सर, so attachments and seeking validation from others every time we are doing anything. कितना वैलिडेशन मांगोगे? ले तो लिया कॉम्पल ने भी वैलिडेशन वाला टॉपिक. हाँ, कितना वैलिडेशन चाहिए भैया लोगों से? अभी तो बोला वैलिडेशन सीकिंग जजमेंट. हाँ, तो इससे ज्यादा वैलिडेशन कहाँ है? हर पॉइंट में वैलिडेशन नहीं डालेंगे ना. उसके अलावा कुछ और सोचो. हाँ जी, ओके. बताओ अक्षता. So some kind of trauma, like any traumatic event, and not receiving proper counseling after it. Yes, so basically like, mental health. I understand, but very good point. Trauma, basically because of the past trauma, past experience, past shame, past guilt, past whatever, basically anything about the past experience where you've gotten stuck. And since you have gotten stuck, there's a constant conflict. Conflict is creating mental weakness. मतलब एक बोझ आपके सर पर है, in the sense, अगर कोई physically strong इंसान है, उसके सर पे मैं 20 किलो का बोझ रख दूं, तो क्या वो चीजें उठा पाएगा? एफर्टलेसली नहीं ना. या पीछे पीठ पे 20 किलो का वजन रख दूं, उसके बाद चलो अब चल के दिखाओ मुझे ऐसे स्ट्रांगली, तो नहीं हो पाएगा ना. एग्जैक्टली द सेम थिंग. अगर इतना सारा पास्ट बैगेजेस, पास्ट ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंसेस, द मोमेंट वी गेट स्टक इन दोस पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट स्टार्ट्स टू मेक अस मेंटली वीक ईच डे. इट्स लाइक हमारे यहाँ कहते हैं कि वो दीमक की तरह आपको खाता रहता है, कि अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आपको खोखला करता रहेगा. एंड यू विल ऑटोमेटिकली, आपकी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल इम्यूनिटी जीरो होनी शुरू हो जाएगी. एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. क्लियर? और बताओ, और किस वजह से मेंटली वीक हो जाते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ जी प्रीति जी बताएं. सर अटैचमेंट. अरे 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 अटैचमेंट तेजस्विनी जी ने बोला, अटैचमेंट के साथ वैलिडेशन भी बोला, वैलिडेशन कॉम्पल जी ने बोला, तो फिर कुछ और भी सोचो आउट ऑफ द बॉक्स. अब एक्चुअली पता क्या, हम अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं यहाँ पर. यू आर राइट. हम अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं ना, तो अपनी कहानी बता रहे हैं. अपनी कहानी तो ठीक है, उसके साथ बाकी सबके बारे में भी सुनना जरूरी है. वंडरफुल. और बताओ. ट्रॉमा वाज रियली नाइस. और बताओ. हाँ अंकिता बताओ. Sir, maybe we are stuck in the belief system. Yes, very good point. When we get stuck with the old pattern belief systems and start acting upon them, in the sense हमारे पुराने तकियानुसी beliefs. जैसे आईफोन को अपग्रेड करना पड़ता है ना, ऐसे हमें भी खुद को अपग्रेडेशन बड़ी जरूरी है जिंदगी के अंदर. लेकिन हम खुद को अपग्रेड नहीं करते, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम अटके हैं तो अटके ही हैं. जैसे एक बिलीफ सिस्टम मेरा बहुत पुराना था. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, जिंदगी में हर किसी के साथ होता होगा, जब काम नहीं होता, जब कोई परेशानी आ जाती है, जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, घर में पैसे नहीं आते, तो कैसे होता है, भगवान की हम पूजाएं करनी शुरू करते हैं, हवन करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं. करेक्ट? और ऐसे ऐसे यहाँ पे अंगूठियां पहन लेते हैं, गले में चेन लगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं हम. सब्जेक्ट टू एवरीवन्स ओपिनियन, कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं, अपनी अपनी मान्यता है. बट ये मैं अपनी जिंदगी के बारे में कह सकता हूँ कि ऐसा मैंने भी किया था. जब क्रिकेटर था तो मॉम वैसे वो नीलम पहना देती थी कि पहनो बेटा, इससे तरक्की होगी, इससे शायद इंडिया के लिए खेलोगे या जो भी है व्हाटएवर. तो खैर इंडिया के लिए तो बहुत दूर की बात है, रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले, अंडर 19 तक ही खेल पाए. तो ये हुआ. और फिर धीरे 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 वो क्या होता है ना, वो डर आपके बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा पक्का होता चला जाता है. उसमें से कभी कभी कुछ चीज हो भी जाती है तो आपका बिलीफ सिस्टम और भी पक्का हो जाता है. तो 10 चीज में आप विश्वास रखते हो तो एक आध चीज हो जाएगी तो और पक्का हो जाएगा.
अब क्या, फिर आप गॉड फियरिंग जाल में बुनना शुरू कर देते हो खुद को कॉन्स्टेंटली। जैसे मुझे याद है एक फिल्म मैंने की थी जो रिलीज नहीं हुई, उसकी डबिंग मुझसे नहीं हो रही थी, तो मैंने ऐसे मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ अंधेरी से कहाँ पर है, सिद्धिविनायक, दादर से आगे है, काफी दूर है, तो पैदल चल के जाऊंगा, अगर मैं पैदल चल के जाऊंगा ना तो फिर मेरी डबिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैंने मंडे रात को चले भी हम लोग, और ट्यूसडे को पहुंचे भी। खैर डबिंग तो इस वजह से अच्छी हुई क्योंकि मैंने आवाज पे क्लासिकली ट्रेन काम किया, वोकल कॉर्ड्स पे काम किया, तो उसके बाद आवाज अच्छी हुई, उसके बाद डबिंग बेहतर हुई। लेकिन ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन इसमें भगवान भी क्या करेगा, करना तो आपको पहले पड़ेगा, तो भगवान ऊपर हाथ से रखेगा ना ऐसे। तो खैर ये सब हुआ। फिर एक प्ले देखा था मैंने कई साल पहले, प्ले का नाम था किशन वर्सेस कन्हैया, परेश रावल जी का प्ले था, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था ओ माय गॉड, दैट फिल्म जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल जी हैं। सो वो उस प्ले का ही अडेप्टेशन है, सेम डायरेक्टर उमेश शुक्ला डायरेक्टेड दिस एंड डायरेक्टेड दैट। तो प्ले वाज आल्सो स्लाइटली मोर एडवांस एंड मोर डिटेल्ड वर्जन इंस्टेड ऑफ फिल्म में तो काफी सारी चीजें हम कट कर देते हैं क्योंकि सेंसर्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। प्ले वाज मोर रॉ। और मुझे याद है जिस लम्हे में मैंने वो प्ले देखा, उस लम्हे में यहाँ कुछ जागृत हुआ, उस लम्हे में मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया। उस दिन से पुराना बिलीफ सिस्टम था गॉड फेयरिंग, नया बिलीफ सिस्टम आया गॉड लविंग। तो इस तरह से जिस समय, जिस मोमेंट पे आपको समझ में आ जाए, जिस दिन ये बुद्धि जागृत हो जाए, अपने पुराने के पुराने बिलीफ सिस्टम को वहीं के वहीं छोड़ दो। हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स में अटके पड़े हैं, अपने पुराने सुपरस्टिशंस में अटके पड़े हैं, अपने पुराने डरों के अंदर अटके पड़े हैं। इन सारी चीजों को छोड़ोगे तब जाके अपना मेंटल वीकनेस खत्म होगी, क्योंकि हमें खुद को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना बड़ा जरूरी है। और वो अपग्रेडेशन के लिए पुरानी चीजें, पुराने तकियानों से बिलीव, जहां जहां अटके पड़े हो कि सिक्योरिटी के लिए हाइपोथेटिकली यू नीड अ मैन ऑलवेज टू बी सिक्योर इन लाइफ, नो, you don't need a man to be secure in life, right? These are old patterned belief systems कि सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, you need somebody else, you don't need anybody else. So ऐसे करते करते जिन जिन चीजों से खुद को बांधा हुआ है वो सारे ओल्ड पैटर्न बिलीफ सिस्टम को ड्रॉप करो, स्टार्ट इंकलकेटिंग न्यू बिलीफ सिस्टम्स इन लाइफ। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं निरंतर बदलाव हूं। हम बदलाव से घबराते हैं, इसलिए अपने कोकून में चले जाते हैं। फिर हमें क्या करते हैं ना, पुराना सड़ा हुआ पानी, कहते हैं कि पुराना सड़ा हुआ पानी गटर का होता है, लेकिन क्या होता है ना, अगर हमें गटर में रहने की आदत पड़ जाती है, सामने बाहर समुद्र होगा, साफ पानी होगा, लेकिन एक जंप मारनी पड़ती है। अब जंप नहीं मारेंगे लेकिन उसी गटर के पानी के अंदर अटके रहते हैं। तो इसी वजह से हम बहुत ज्यादा मेंटली वीक हो जाते हैं। ओके, यस साहिल बोलिए। सर एक मेंढक की कहानी आपने सुनी होगी, बॉइलिंग मेंढक एक बॉइलिंग पॉट में। तो वो सर हम लोग जो है, हम कई बार उस मेंढक की तरह हो जाते हैं, जब तक वो टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंचता नहीं है तब तक वी डोंट मेक एन एफर्ट टू चेंज आवर लाइव्स। तो ये बहुत पहले ही हमें वो रियलाइज करना चाहिए लाइफ में कि कोई भी बाहर से बदलने नहीं आएगा, इट्स वी हु हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, देन वी कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज। Absolutely wonderful, very well spoken। वो मेंढक की कहानी बड़ी अच्छी है, I'm sure सुनी होगी आपने कि एक मेंढक को अगर बॉइलिंग हॉट वाटर के नीचे रख देते हैं जिसका 100 डिग्री टेम्परेचर हो, तो मेंढक उठ के फुदक के बाहर चला जाता है उस ट्यूब में से। लेकिन अगर वही मेंढक और यहाँ पे धीमी आंच में अगर पानी को गर्म करने के लिए रखे और मेंढक को उसमें डाल दे, तो मेंढक को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे ही हम धीमे 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 दीमक की तरह बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव कंडीशनिंग, सब चीजें हमें खाती रहती हैं और धीरे धीरे हम उस मेंढक की तरह हो जाते हैं, अपना दम तोड़ देते हैं उसी कंडीशनिंग में। तो धीरे 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 वो स्पाइरल करती रहती है और हमें समझ में भी नहीं आती। थैंक यू साहिल, दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। So that's exactly what is happening in our lives. So if all those symptoms are attached to you at the moment and you're feeling an identification with all those symptoms of mental weakness, that basically means it's time to take some actions as well. Okay, wonderful. और हम mentally weak क्यों हो जाते हैं बताओ? चलो superstitious belief भी आ गया, एक दो चीजें और हैं, बताओ। चलो क्लू दे देता हूँ, क्लू दूं? पास्ट से रिलेटेड एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग। बताइए पूजा। फेलियर। फेलियर के एक लेयर डीप जाओ। फेलियर इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हेन वी बिगिन टू, फेलियर हुआ, फेलियर तो होगा जिंदगी के अंदर, पास्ट में कोई फेलियर हुआ, फेलियर से क्या हुआ? डिप्रेशन।
फेलियर और डिप्रेशन के बीच में क्या हुआ? रुको, एक मिनट, सबके सब रुको, शांत गदाधारी। फेलियर हुआ, आपने किसी चीज को ट्राई किया, फेल हो गए, करेक्ट? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, हजारों चीजें लाखों चीजें ट्राई करोगे, हर चीज में सक्सेसफुल तो कोई भी नहीं हुआ, भगवान जी भी नहीं हुए होंगे, शायद भगवान जी हो गए, इंसानों की बात करते हैं, ओके। तो आपने 10 चीजें ट्राई की, 10 में से 5 फेल हो गई या 8 फेल हो गई या 2 फेल हो गई, वो छोड़ देते हैं, फेलियर हुआ। अब फेलियर का रिजल्ट है डिप्रेशन, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ ये सोचो, बताओ। होप नहीं, फेलियर और डिप्रेशन के बीच में क्या हुआ? सोचो 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 सोचो। डिप्रेशन क्यों हुआ? एक सेकंड रुको, डिप्रेशन क्यों हुआ? पूजा जी बताएं। बिकॉज जो चीज चाहिए थी वो हुई नहीं। ठीक है। और people like suppose if you are in a relationship and that relationship didn't work out, something bad happened actually okay in life. रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क आउट, अनफेवरेबल रिजल्ट हुआ, वहां पे फेलियर हुआ, उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ। लेकिन बीच में क्या ऐसा नहीं हो? तो सोचो जरा, ये डिप्रेशन तक हम तब पहुंचते हैं या तो हम खुद को ब्लेम करना शुरू करते हैं या फिर हम दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं। आइडियली मुझे लगता है डिप्रेशन के लिए खासकर हम खुद को ज्यादा ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि काश हमने ये कर दिया होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती, या फिर हम दूसरों को भी ब्लेम करते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि उसने ठीक नहीं किया, मैंने अपना 100% दिया था, अगर वो करता तो ये चीजें ठीक हो जाती, और कहीं ना कहीं आज हम इस अनफेवरेबल सिचुएशन में नहीं होते, हम फिर फेवरेबल सिचुएशन में होते। Even for failures we blame others, not ourselves. Depends. Some people blame others, some people blame themselves. मतलब कुछ लोग होते हैं जो सारा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दूसरे को दे देते हैं कि उसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है, as if the remote control of our life in his hand. Or sometimes we keep blaming ourselves constantly. That's where comes the regret. That's where comes the guilt. और इन regret और guilt की वजह से डिप्रेशन होता है। So failure और डिप्रेशन के बीच में या तो कोई गिल्ट होगी, या कोई रिग्रेट होगा, या कोई शेम होगा, या फिर दूसरे को ब्लेम करना कि अगर वो कर देता तो शायद आज हम बेहतर होते। इस बात को सोच सोच के ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके पूजा जी, क्लियर है? और बताओ, हमने फियर ऑफ अननोन की भी बात कर ली है, ओल्ड पैटर्न बिलीफ्स की भी बात कर लेती है, और बताइए और किस वजह से मेंटली वीक होते हैं? हाँ जी नेत्रा बताएं। Fear of moving out of a comfort zone. Absolutely, very nice. Fear of moving out of the comfort zone also comes into the fear of the unknown. कि हमें fear of unknown बहुत ज्यादा होता है. That's why we don't want to move out of our comfort zone. We want to stay in our comfort zone. तो उसकी वजह से हम, क्योंकि हम comfort zone से बाहर नहीं निकलते हैं, हम अपने, जैसे हमने कहा, उस काले पानी के अंदर, उस खराब पानी के अंदर अटके रहते हैं और धीरे धीरे उसी के अंदर सड़ते रहते हैं। So it is almost like that. और बताओ कोई, श्रेया बताइए। Also not having मतलब believe in yourself, मतलब you believe in your own capacity. बेटा वो सेल्फ डाउट सिम्टम में आता है। कॉज बताओ, हम अपने अंदर बिलीफ क्यों छोड़ देते हैं? व्हाट इज द रीजन? वो तो सिम्टम हो गया ना कि हम सेल्फ डाउट करते हैं अपने आप को, जिसकी हमने बात की। सेल्फ डाउट मींस नो बिलीफ इन आवरसेल्फ या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। किस वजह से होते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर चुके हैं। आगे बताओ, कुछ नया सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। प्रॉब्लम तो सोच रहे हो, सॉल्यूशन के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है ना। और किस वजह से मेंटली वीक होते हैं? श्रेया म्यूट कर दो। क्या हम इस वजह से, एक सेकेंड, क्या हम इस वजह से मेंटली वीक नहीं हो जाते? बिकॉज वी रेजिस्ट द हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज वी ऑलवेज वांट थिंग्स आवर वे ओनली। मतलब जो सामने से आ रहा है उन सब चीजों को हम लेते नहीं हैं और अपनी ही चीजों के पीछे अटके पड़े। वी ओनली वांट थिंग्स आवर वे। We resist the happening in the present moment from this universe. That's where we stop the flow of energy. जब हम सारे की सारी फ्लो ऑफ एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह पे और हमें लगता है बस वैसे ही होना चाहिए और यही करना चाहिए, यही सब चीजें हैं, that basically means again we get stuck in the cocoon, in the comfort zone, because यही चीज हमें आती है तो हमें यही करनी है। लेकिन दुनिया, यूनिवर्स, सृष्टि, ब्रह्मांड आपको 50 चीजें दे रही है। You're constantly resisting something new, some happening in your life in the present moment, because you're tied down by your own
कंट्रोल। सो जब जब आप रेजिस्ट करेंगे तब तब आप अटकते चले जाएंगे, जब जब आप अटकते चले जाएंगे, जब दिमाग अटक जाएगा तो मेंटल वीकनेस अपने आप आएगी। करेक्ट? और बताओ और क्या हो सकता है? Why we become mentally weak? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। Why do we become mentally weak? क्योंकि often हमें किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने कभी बताया नहीं है, किसी ने समझाया नहीं बचपन से लेकर आज तक कि how not to lose control over ourselves, जिसे हम आत्म संतुलन कहते हैं। कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, कभी माँ बाप ने नहीं सिखाया, कभी टीचर्स ने नहीं सिखाया कि जिंदगी की सारी सिचुएशंस के अंदर आत्म संतुलन मतलब सेंटर और बैलेंस अप्रोच कैसे होनी चाहिए, इसका कोई तरीका किसी ने बताया नहीं। तो हम जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली ढह जाते हैं, इमीडिएटली बिखर जाते हैं। सो अगर किसी ने कभी सिखाई होती कि कैसे सेंटर्ड और बैलेंस रखना है अपने आप को, तो हम ढहते नहीं ना किसी प्रॉब्लम के आने पर। फिर हम उस प्रॉब्लम को फेस करते, उसमें से सॉल्यूशन ढूंढते, उसमें से अपना स्थिर दिमाग रखते। तो स्थिरता कभी किसी ने सिखाई नहीं। So the reason we also become mentally weak, or why we have become mentally weak, because there is no centered and balanced approach in our life. आत्म स्थिरता नहीं है, आत्म संतुलन नहीं। ओके जिस दिन आत्म स्थिरता और आत्म संतुलन आ जाएगी, उस दिन अपने आप मेंटल वीकनेस से मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। ओके और एक और पॉइंट है आई थिंक, लेकिन हम बात कर चुके हैं, दैट यूजुअली हम बहुत ज्यादा नेगेटिव कंडीशनिंग का जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे आसपास रहता है, तो उसकी वजह से हम लोग मेंटली वीक हो जाते हैं। ओके अब बात करते हैं हाउ टू टर्न मेंटल वीकनेस इनटू मेंटल स्ट्रेंथ, कि मेंटली वीक से मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। नंबर 1 बहुत सिंपल है, स्टॉप रेजिस्टिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। सबसे पहले तो सारी इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की फ्लो ऑफ एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है। सबसे पहला सेंटेंस उठ के आपका सुबह सुबह होना चाहिए, say yes to this universe. YES in big bold letters. लगा लो, चिपका लो, डायरी में लिख लो, फोन में लिख लो, say yes to universe. Stop resisting from today onwards. Start accepting things. The more you are resisting, the more you're blocking the flow of energy. That flow, that energy, that universe, everything is trying to help you maneuver somewhere, trying to guide you somewhere. लेकिन आप यहाँ पर अटके पड़े हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। करेक्ट? सो स्टॉप रेजिस्टिंग, समथिंग इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। आई वुड से जस्ट ट्राई अ यस एक्सपेरिमेंट फॉर 3 days ओनली। टुडे इज व्हाट? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे रात के 12 बजे तक, ठीक है? इतना ही, ज्यादा मुश्किल नहीं है। संडे रात के 12 बजे तक जस्ट से यस टू एवरीथिंग। कोई बुला रहा है कहीं मिलने के लिए, से यस। कोई फोन करने के लिए कह रहा है, से यस। ट्राई करके देखो। एक फिल्म आई थी, मैंने बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने बहुत बार उसका रेफरेंस दिया है। चलो मैं कह रहा हूँ 3 दिन में नहीं करते। आज क्या है, शाम को 7 बजे सेशन हुआ है ना। टुडे इज थर्सडे राइट। एक काम करते हैं, फ्राइडे रात के 12 बजे तक, कम, ठीक है? ज्यादा नहीं है ना, ऑलमोस्ट 1-1.25 दिन है। तो फ्राइडे रात के 12 बजे तक, मतलब कल मिडनाइट तक, से यस टू एवरीथिंग दैट्स कमिंग योर वे। ट्राई इट, एक्सपीरियंस इट। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। वो फिल्म देख लेना, फिल्म बड़ी अच्छी है। इट्स व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म? इट्स कॉल्ड यस मैन, आई थिंक द फिल्म इज कॉल्ड। इट्स अ फिल्म ऑफ जिम कैरी की फिल्म है। फिल्म का नाम है यस मैन। पता नहीं नेटफ्लिक्स पे है या आई थिंक अमेज़न पे, कहीं तो मिल जाएगी। अगर आप देख सकते हैं तो देखें, क्योंकि वो देखेंगे तो समझ में आएगा इस यस का कितना महत्व है जिंदगी के अंदर। सो आपका पहला होमवर्क है, कल रात को 12 बजे तक, वट एवर कम्स योर वे, से यस, एक्सपीरियंस इट। ट्राई तो करें। ट्राई करने के बाद समझ में आएगा कि यस से कौन से रास्ते खुल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो सामने वाली चीज हमें दिखती भी नहीं है।
जब दिखेगी नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे होगी? जब एक्सपीरियंस नहीं होगी तो कोई नया रास्ता कैसे निकलेगा? तो हो सकता है रास्ते सारे हैं सामने, लेकिन यस कहना नहीं आता, क्योंकि यस कहने के लिए करेज चाहिए होता है, नो कहने के लिए फियर। सिंपल सी बात है ना, यस के लिए तो करेज ही चाहिए होगा। तो क्या करेगा? इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टेप अप योर करेज इन लाइफ। और जिंदगी में बिना साहस के कुछ नहीं हो सकता। जितनी मर्जी आप मेहनत कर लें, जितनी मर्जी आप मशक्कत, शिद्दत, तपस्या कर लें, लेकिन बिना साहस के जिंदगी में कुछ नहीं होगा। द फर्स्ट स्टेप टू लाइफ इज करेज। Courage will only set you free. Courage will only liberate you. Courage will only create the best out of you. Courage will only make you mentally strong. MS धोनी जब स्टेडियम में 2011 वर्ल्ड कप में लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग स्टेडियम में हैं, आखिरी तो नहीं, उस ओवर की कौन सी बॉल पे सिक्सर मारना है और सिक्सर से मैच जिताना है, उसके लिए भी तो करेज चाहिए ना। वो भी तो 6 रन एक एक करके ले सकता था ना, डर डर के एक एक करके किसी तरह, बट ही डिसाइडेड नो, लेट्स टेक द करेज। और आज तक वो लोग उसका छक्का याद रखते हैं। करेक्ट? वो सिक्सर आज तक आपको याद रहेगा, वो लुक भी आपको याद रहेगा कि हाउ ही वाज लुकिंग एट द सिक्सर क्रॉसिंग द बाउंड्री, राइट? इट वाज इजी फॉर हिम. वी हैड overs, I remember. It was not the last over. We had overs, we had 10-12 balls. He could have easily taken 1-1 run, but he decided to take the courageous step, and today he is. आप सारी जिंदगी को याद रखोगे. So courage is the first step to liberate yourself. Courage is the first step to mental strength. So stop resisting, start accepting. Acceptance का मतलब ही courage है. Okay? Number 2. Stop reacting, start responding. एक होता है reaction, which is on auto mode, कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपने immediately उठा के उसको पलट के जवाब दे दिया. करेक्ट? किसी ने आपको प्रिक किया, चाबी लगाई और आपका गुस्सा निकल गया. किसी ने चाबी लगाई, आपका गाली गलौज निकल गया. किसी ने कुछ कहा और आपकी चाबी लगनी शुरू हो गई. That basically means you become a puppet in someone's hand. अगर रोड पे चलता हुआ कोई इंसान मुझे गाली गलौज करता है और मैं रोड पे उतर के उसके साथ लड़ना शुरू कर देता हूँ, तो मुझसे ज्यादा मेंटली वीक और बेवकूफ इंसान कोई नहीं है. करेक्ट? तो क्या होना चाहिए? किसी ने कुछ कहा, एक है रिएक्शन विच इज ऑन ऑटो मोड. ऑटो मोड पे गाड़ी चलती है ना, हमारी गाड़ियां ऑटो मोड पे चल रही हैं. ऑटो मोड से खुद के मोड पर लेकर आना. दैट मीन्स रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में गैप होता है, द गैप ऑफ साइलेंस. कि किसी ने कुछ कहा, होल्ड ऑन, think about it, let it come inside you, let it feel. Do not react instantaneously. Take a gap of silence and then respond. क्या होता है ना, जैसी गैप ऑफ साइलेंस आ जाता है, जैसी थोड़ी सी शांतता आ जाती है जहन के अंदर, अपने आप रिस्पॉन्स थोड़ा समझदारी वाला निकलता है. क्योंकि अब यहां से शुरुआत हुई आत्मस्थिरता की, यहां से शुरुआत हुई आत्म संतुलन की. कि किसी ने कुछ कहा और हमने इमीडिएटली फटक से जवाब नहीं दिया, हमने शांति से, स्थिरता से उसकी बात को सुना, महसूस किया, समझा और उसके बाद जवाब दिया. तो दोनों चीजों में फर्क है. एक में स्पीड बहुत फास्ट है और एक में स्पीड ऑटोमेटिकली हमने डेलिबरेटली स्लो कर दी है. क्लियर? अगर मैं स्पीड से बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, लेकिन अगर मैं आराम से बोलूंगा तो आपको क्लैरिटी से हर बात समझ में आएगी. इतना ही फर्क है. ओके? सो स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. नेक्स्ट. हाँ, सारा खेल जिंदगी में हमने क्या बात की थी कि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान कैसा होता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का चुटकियों में सॉल्यूशन ढूंढ लेता है. कैसे ढूंढ लेता है? क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है ना जिंदगी के अंदर, जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड दृष्टिकोण है. वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड दृष्टिकोण नहीं है. मतलब वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता है, वो प्रॉब्लम को एक पजल की तरह देखता है कि ये पजल है. जैसे हम पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसी आपकी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम आए, कोशिश करें, ट्राई टू सॉल्व इट लाइक अ पजल. इट इज अ पजल एट द मोमेंट. बोर्ड गेम्स खेलते हैं, पजल गेम्स खेली होंगी सबने. करेक्ट? क्रॉसवर्ड खेलते हैं कि ये पजल है, कौन से वर्ड कौन सा वर्ड के साथ मैच करेगा. एग्जैक्टली द सेम वे लाइफ इज.
Everything that's coming to you, if you keep looking them as problems, then you become self-doubt, self-victimization, guilt, regret, shame, anxiety, anger, frustration. Correct? All of them, put them on side. What do we do now? There's a problem. अब सॉल्यूशन क्या है, इसको खोजते हैं. मतलब प्रॉब्लम आएगी और आपका दिमाग इंस्टेंटेनियसली इस बात पे होना चाहिए कि प्रॉब्लम तो आ गई है. करेक्ट? हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था, हम रेजिस्ट बहुत करते हैं ना. हमारे साथ ही क्यों हो जाता पता नहीं, मैंने भगवान का पता नहीं क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ परेशानी हमेशा होती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी जिंदगी खराब है, पता नहीं क्या लिख के भेजा है ऊपर वाले, कौन सी कुंडली मेरी लिख के भेजी है कि मेरे साथ ही सब कुछ होना होता है. आप तो चोजन माने ना, जैसे भगवान के पास सारा टाइम आपके लिए था लिखने के लिए. हाँ, लेकिन हम यही मानते हैं. तो सिंपल है, जब प्रॉब्लम आए ये नहीं सोचना है कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ दिस वर्ड इज वाई मी से लेकर वॉज मी. दैट मीन मेरे साथ ऐसा हो गया. अब बताओ करना क्या है. आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज, ये बहुत सालों से है, डीप रूटेड कंडीशनिंग से आ रहा है. मतलब करते 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 ये बहुत सालों से ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, माय माइंड कंप्लीटली शट्स डाउन एंड थिंक्स अबाउट ओनली वन थिंग, कि भाई अब करना क्या है, ये तो प्रॉब्लम आ गई है, अब गाड़ी पंचर हो गई है, रास्ते में है, रोड में. अब ये नहीं सोचेंगे कि गाड़ी क्यों पंचर हो गई, टायर खराब था, ऐसा था, वो तो हो गया. अब बताओ किसको फोन करना है, कहाँ से सोल्यूशन आएगा, किससे बात करनी है, कोई पंचर वाला आसपास है नहीं है, किसी को बुलाना है, ऑडियो करवानी है, क्या करना है, ये बताओ. ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है कि यार आज तो घर के बाहर निकले, वो काली बिल्ली रास्ता काट गई, तब से यही होना था, इसी वजह से गाड़ी पंचर हो गई. हम इन सब चीजों में पड़ जाते हैं. करेक्ट? कि इसने ये कहा था, इसकी जबान खराब है. कहाँ फंस जाते हैं हम जिंदगी की बेकार की चीजों में अंदर, बेकार की कहानियों के अंदर. लेकिन करना क्या है इंपॉर्टेंट. सो ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे, the moment a problem arises, your mind should only focus on, tell me what can I do to find a solution, instead of thinking about this is the problem, I can't do this, I don't know how to do this. No, ये सब तो हो गया. And why did it come to me? Tell me what is the solution. Find the solution there and then. Focus all your energies on the solution. That's where mental strength begins to develop. हो सकता है पहली बार ना हो सकता है दूसरी बार भी ना हो, लेकिन तीसरी बार अंदर से कुछ जर्मिनेट होगा, क्योंकि अब आपने पूरा का पूरा डायमेट्रिकली 180 डिग्री चेंज किया अपने आप को. करेक्ट? अब आपने कहा बहुत हो गया इस सोच के अंदर, अब यहाँ से छलांग लगाते हैं एक लंबी, यहाँ पर पहुंचते हैं, तभी खाई क्रॉस होगी. सो नाउ हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग का फर्स्ट स्टेप ही होगा. यहीं से एक्सेप्टेंस है, यहीं पे करेज है, यहीं पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, यहीं पे पजल की तरह उसको देखना और आगे बढ़ना. ओके? एक जिंदगी के कुछ शब्द हैं, किसी ने मुझे कहे थे, एक शो में मैं फंस गया था, तो मैं रोज प्रे करता था कि वो शो बंद हो जाए. खैर वो शो काफी अच्छा था, मुझे अवार्ड मिले ना, लेकिन मैं बहुत परेशान था उस शो के अंदर, तो खैर वो अलग कहानी है. तो एवरी डे ही यूज्ड टू ओनली टेल मी वन थिंग, सम फ्रेंड ऑफ माइन, काफी मुझसे बड़े थे उम्र में, कि आज का दिन हो गया ना, बस आगे बढ़ो. तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, इस शब्द को जिंदगी में गांठ मान लो कि आगे बढ़ो, बस अटको नहीं, चिपको नहीं, फंसो नहीं. हो गया, गलतियां हो गई, परेशानी हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, आपने धोखा दे दिया, बिजनेस फेल हो गया, एग्जाम फेल हो गया, किसी के साथ कुछ भी हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी के साथ सेपरेशन हो गया. अब आगे बढ़ो. होता क्या है, इन सारी चीजों के बैगेजेस में इतना फंस जाते हो कि आगे बढ़ना ही भूल जाते हो. जब तक आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक ऐसे ऊपर वाला भी ऐसे हाथ नहीं रखेगा. पहले आप करोगे, फिर ऊपर वाला हाथ रखेगा. ऐसा नहीं होगा कि पहले हाथ रखे और फिर आप करो. ऐसा पूरी सृष्टि में कभी नहीं हुआ. पहला कदम आपका, उसके बाद ऊपर वाले से हाथ रख के आपको धक्का मारेगा. घर के बाहर निकलोगे नहीं, लॉटरी की टिकट खरीदोगे नहीं, 10 लाख की लॉटरी कैसे लगेगी. मतलब सॉरी, जाके खरीदना मत. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग हियर, बट यस, पहले तो लॉटरी की टिकट तो खरीदनी पड़ेगी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जाना पड़ेगा, घर के बाहर निकलना पड़ेगा. ठीक है? so, पहले आप करोगे, फिर कुछ होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. जैसे अंकिता ने कहा था, हमारे ओल्ड पैटर्न बिलीफ सिस्टम्स हमें अटका देते हैं. सो इफ दिस इज द कॉज, तो इसका सॉल्यूशन भी यही है, बिगिन टू डिसआइडेंटिफाई विद योर ओल्ड पैटर्न बिलीफ सिस्टम्स. मतलब
अपने तकियानुसी पुराने बिलीफ सिस्टम अगर कुछ है ना, जो आपके दिमाग में डाला हुआ है, खासकर लड़कियों के दिमाग में बहुत ज्यादा डाला जाता है, महिलाओं के दिमाग में, फीमेल्स के दिमाग में, मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग है कि जो भी आपके माँ बाप से आ रहा है, एनवायरमेंट से आ रहा है, वो अब खत्म हो चुका है। अगर नहीं है तो आंखें खोल के देखो, बहुत सारे लोगों ने उन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करके जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। यहीं पे मलाला यूसुफ अफजाई है, यहीं पे प्रियंका चोपड़ा है, यहीं पे दीपिका पादुकोण है, यहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो दिख जाएंगे। करेक्ट, यहीं पे पूर्णिमा सिन्हा है, यहीं पे एक लेडी जिनका नाम बोल रहा हूँ जो नासा में गई है, ये भी आप ही के दौरान, आप ही के बीच के ही हैं लोग। इन्होंने बस उन पुराने बिलीफ सिस्टम को हावी नहीं होने दिया। करेक्ट, अगर वो हावी होने देते ना, उसमें अटक जाते तो शायद कुछ कर नहीं पाते। तो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को, अब आपका सॉफ्टवेयर जो है ना 2G वाला ही चल रहा है अभी भी। यहाँ आईफोन 12 प्रो आ चुका है और आप अभी भी 2G में ही अटके पड़े हो। करेक्ट, तो आईफोन 2 बहुत पुराना, खत्म हो चुका है। 10 साल हो गए इस बात को। इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ। सो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, दिस इज अनदर होमवर्क। आज बैठ के ना, अभी सेशन के बाद, जस्ट सिट विद योरसेल्फ फॉर 20 minutes, write down all those old pattern belief system which have become outdated, but इनको आपके दिमाग में ऐसे डाल दिए गए हैं जाने अनजाने में। जैसे हमारी एक स्टूडेंट थी, उसकी हाइट छोटी थी, तो उसके दिमाग में बस एक ही ओल्ड पैटर्न बिलीफ था, जिसे जिसे जब हमने निकाला तो उसके बाद आज वो अमेरिका में काम करती है। हर नेम इज सूजन की सिस्टर का क्या नाम था, आई थिंक अक्षता जैन, शी इज फ्रॉम पंजाब। ये काफी साल पहले की बात है, 3-4-5 साल पहले की बात है, आई थिंक 4 years बिफोर की बात होगी। तो बस एक ही डीप रूटेड बिलीफ था। वो बिलीफ क्या था कि हाइट में छोटी थी, तो 10-12 साल की उम्र से बस एक ही थॉट था दिमाग में घर वालों का कि आपकी तो शादी नहीं होगी, आपकी हाइट छोटी है, आपकी शादी नहीं होगी, आपकी हाइट छोटी है, आपकी शादी नहीं होगी, आपकी हाइट छोटी है। तो एक चहकता महकता बच्चा अपने कुकून में चला गया, और मुझे लगता है 11 साल की उम्र से लेकर 27-28 ईयर्स की एज तक वो सिर्फ अपने ही कुकून में रहा, दबा हुआ, सहमा हुआ, मतलब ऐसा कि किसी से बात भी ना करे। और कमाल की बात है, जीनियस बच्चा, लॉयर पेशे से, तो किसी के साथ इंटर्नशिप या किसी के साथ जॉब कर रहे थे, टॉप लॉयर के साथ, वहां पे काम में मतलब जीनियस। काम में जीनियस तभी वो अमेरिका जॉब के लिए गई और जॉब क्लियर भी हुई, लेकिन जबान से शब्द नहीं निकलते थे। तो सोचो जरा, 17 साल एक बिलीफ सिस्टम ने आपको अटका के रख दिया। किसी का बिलीफ सिस्टम होगा, किसी का कोई फिजिकल ब्यूटी, किसी का हाइट, किसी का कुछ, किसी का कुछ, हर किसी के अपने अपने होते हैं। अगर आप उसमें अटक गए ना, तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, ये सच है। तो इस तकियानुसी ओल्ड पैटर्न बिलीफ सिस्टम से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। जब हमने उनसे बात की, काफी सारे सेशंस किए उनके साथ, फिर धीरे 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 करके शी कुड ड्रॉप दैट। और क्या होता है ना, आपका एनवायरनमेंट आपको और भी ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि जब 11 साल से बात आ रही है, अब जब 27 में शादी नहीं हुई, तो सोचो आसपास के एनवायरनमेंट, एंड शी बिलोंग्स टू द जैन फैमिली, वहां पे मेरे ख्याल से जल्दी शादी करते हैं। करेक्ट, तो मतलब और भी ज्यादा प्रेशर कि अब तो हो ही नहीं रही, हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था, आज हो गई। अमेरिका में है, वहां रहती है, सैन फ्रांसिस्को आई थिंक। He stays there, working very well, working on a good pay package, plus married over there now. तो हो गया ना। तो कौन थे ये लोग जिन्होंने पहले से अपनी जिंदगी, आप लोगों की जिंदगी डिसाइड कर ली? मैं बताता हूँ कौन होंगे ये लोग। अनफॉर्चुनेटली आपके अपने परिवार के सदस्य, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच तो यही है। तो आपके अपने परिवार के सदस्य। तो अब सोच लीजिए कि जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर उसी डीप रूटेड कंडीशनिंग के अंदर अटके रहना है, क्योंकि अटके रहोगे तो बाहर कोई निकाल नहीं पाएगा, निकालना आपको खुद ही पड़ेगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। मेहनत, मशक्कत, मुसीबत, तपस्या, अनकंफर्टेबल जोन, परेशानियां झेलनी तो पड़ेंगी, बिना उसके थोड़ा ना होगा। प्रियंका चोपड़ा ऐसे थोड़ा ना हॉलीवुड पहुंच गई, किसी ने प्लेट में रख के थोड़ा ना कहा था। करेक्ट, यहाँ पे इतने सारे लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, फिल्म एक्टर्स नहीं पहुंच पाए। मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, वो नहीं पहुंच पाए, एक अकेली लड़की ने करके दिखा दिया।
इंटरनेशनल सीरीज भी कर ली, इंटरनेशनल फिल्में भी करती हैं, इंटरनेशनल फिल्में प्रोड्यूस भी करती हैं। सोचो, बस इतना ही है कि यहां से सोच अलग बस, और अपने पुराने बिलीफ सिस्टम में अटकी नहीं। इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बहुत सिंपल है, हमने बात की थी ब्लेमिंग की, फेलियर और डिप्रेशन के बीच में ब्लेमिंग आती है। सो बहुत सिंपल है, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ and stop blaming others also. If you want to become mentally strong, take full accountability of your actions. Accountability और blaming में फर्क होता है। Accountability मतलब होता है हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। Blaming होता है हम खुद को कोसते रहते हैं। कोसने का मतलब है no action. Accountability means taking action. If something went wrong, you did something wrong, okay, due to which a relationship failed, an exam failed, or a business failed, or a partnership failed, or anything failed, whatever happened. Tell me, what are you learning from it? Did you learn anything from that? If you have learned, then take action of that learning and apply it in your today life. Apply it in your present so that you do not repeat the same mistake in future. हम क्या करते हैं, 1 second साहिल, हम क्या करते हैं, सिर्फ खुद को ब्लेम करते रहते हैं। ब्लेमिंग का मतलब खुद को कोसना, कोसने से कुछ नहीं होगा। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। Tell me what went wrong. If this is something that I did wrong, or he did wrong, or she did wrong, now can I learn from it? Can I take an action? Can I apply it in my present moment so that I do not end up repeating in the same pattern in the future? इतना ही आसान है। Okay, action oriented approach. हाँ जी साहिल बोलिए। Sir, if we take accountability of our own actions, that requires braveness and courage. That is something is not possible unless we are courageous enough to accept our mistakes and what went wrong. And also failure, I have read this somewhere, that fail says first attempt in learning. So if we are, that's very nice. So if that's very nice. Fail says 1 second, first attempt in learning. That's beautiful. चलो मैं एक और बड़ी अच्छी चीज बता देता हूँ। साहिल 1 second होल्ड करेंगे। फेलिंग और फेलियर का फर्क ये शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। हम फेलिंग को फेलियर समझ लेते हैं, करेक्ट? फेलिंग का मतलब क्या होता है? मैं चला रोड पर, मैं गिर गया, करेक्ट? मैं चला रोड पर, मैं गिर गया, तो क्या हुआ? फेलिंग। आई फेल्ड, देयर वाज एन अटेम्प्ट, आई फेल्ड इन दैट। मैं चला रोड पर, मैं गिर गया और मैं वहीं अटक के फंस गया कि अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। That's what is termed as failure. When you refuse to get up, when you refuse to step up, when you refuse to bounce back is when you are termed as a failure. Every time else, whatever you're doing, it's always called failing. You failed at that thing. You failed at this thing. You failed at this attempt. You failed at that attempt. You tried, you failed. You tried, you failed. That is all failing. उसे failing कहते हैं। Failure का मतलब है when you refuse to get up, when you refuse to step up, when you refuse to move forward, when you refuse to bounce back is called. Then you yourself term as failure. आपको failure वैसे भी कोई करार नहीं करता है। कोई आता नहीं आपका दरवाजा खटखटाने के लिए कि आप फेलियर हैं। सॉरी, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो ये भी कहेंगे, ये भी आपके परिवार के सदस्य ही होंगे जो बार बार दरवाजा खटखटा के कहेंगे कि यू आर अ लूजर, यू आर अ फेलियर, यू कांट डू दिस, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम अपनी जिंदगी खराब कर दोगे, तुमने तो ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। ये भी आपके परिवार के सदस्य ही हैं और इन्हीं की चीजें सबसे ज्यादा आपको चुभती होंगी और इन्हीं की चीजों की वजह से आप जिंदगी में अटक जाते हैं। तो फैसले करने बहुत सारे आज जिंदगी में, सोच लेना, इम्पोर्टेंट है जिंदगी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी, यस साहिल बोलिए। सर एक मैंने ना सर एक कहानी पढ़ी थी, एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द किंग, बट दैट ही वाज इम्प्रिजन्ड इन अ जेल में। तो उनको एक उन्होंने वो शिक्षा कहते हैं ना ली थी एक चींटी से। एक चींटा जेल की दीवार पे बार बार चढ़ता था, and then he used to fall, and then he used to again climb up and then again fall. तो उस चींटे से उन्होंने सीखा कि जब एक चींटा बार बार चढ़ रहा है वॉल पे एंड बार बार गिर रहा है, स्टिल वो छोड़ नहीं रहा है ऊपर चढ़ना। जितना भी चढ़ता है गिर जाता है, दोबारा चढ़ता है।
तो एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाई डू वी लाइक हम फेलियर अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम फॉलिंग को फेलियर समझ लेते हैं। वो तो हमें सिखाने के लिए आया है लाइफ में। अगर हम गिर रहे हैं तो वी शुड अटेम्प्ट इट अगेन, अनलेस एंड अंटिल वी सक्सीड। उसको अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। Absolutely wonderful, very very nice, very well explained. Thank you Sahil, very beautifully explained. I think इसके तो मुझे clarity देने की जरूरत ही नहीं है. It's absolutely clear in that. Wonderful. Moving on to next. Number 6. हमने instant gratification की बात की थी, correct? कि जो लोग mentally weak होते हैं वो instantly lure हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा कोई lure करेगा temptation, तो बहुत सिंपल है, ये कॉज है। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि स्टॉप गेटिंग टेम्प्टेड सो इजीली इन लाइफ। चाहे वो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जहां जो आपको बहुत जल्दी ल्योर कर देती है। तो आज कोई चीज ल्योर कर रही है, कल कोई इंसान ल्योर करेगा, फिर कोई जॉब ल्योर करेगी, फिर कोई रिलेशनशिप ल्योर करेगा, फिर कोई बिजनेस डील ल्योर करेगी। स्टॉप गेटिंग ल्योर्ड. Stop getting tempted so easily, because the easy you get tempted, the weaker you become. अपना स्टैंड पॉइंट भी जिंदगी में चाहिए, अपनी थोड़ी सी जमीन पक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कोई आए और जरा सा, जैसे वो चूहे के लिए कैसा होता है, जरा सी रोटी दिखाई और उसके बाद चूहेदानी में कैद कर लिया, करेक्ट? तो हमेशा जिंदगी में इफ यू वांट टू बी मेंटली स्ट्रांग, ये टेम्पटेशंस के चक्रव्यूह में ना फंसे। इसलिए क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में देखा है, खासकर बिकॉज मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, सो आई हैव सीन देम, दे कीप गेटिंग वेरी वेरी ल्योर्ड एंड इमीडिएटली ल्योर्ड बाय समबडी हु इज अ बैड बॉय, करेक्ट? कौन कौन है यहाँ पर who gets tempted and who gets lured with bad boys? नहीं होगा तो स्कूल कॉलेज में होगा, कभी ना कभी तो होता ही ऐसा। Boys who are Casanovas, boys who are flamboyant, boys who are out of, looks very pretty and this and that. और क्या होता है, after a point of time उन्हीं को देखा है howling, shrieking, screaming to get out of the relationship and they're not able to, right? Immense hurt, immense pain, immense anxiety, immense stress, immense depression, because you kept getting lured instantly. They knew, you knew at that point of time that that boy is not meant for you, that boy does not synchronize with you, but because you kept getting lured, you kept getting into that whole chakravyuh, and then once you're stuck into that, फिर आप फंस जाते हो। So कोशिश करने की जिंदगी में luring में ना अटके, stop getting tempted, okay? Moving on to next, इसी के साथ बड़ी अच्छी चीज है, जिंदगी में हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी विल पावर बड़ी कमजोर है। टू स्ट्रेंथन योर विल पावर, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है विल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, कि अगर कोई फैसला ले लिया है तो फैसला ले लिया है, कोई काम करना है तो करना है, अपने आप से कमिटमेंट कर दी है तो करनी है, किसी और को कमिटमेंट कर दिया तो पूरी करनी है। अगर सुबह 5 बजे उठना है तो सुबह 5 बजे उठना है। किसी ने कहा है कि रात भर जाग के पढ़ना है क्योंकि कल एग्जाम है, तो पूरी रात जाग के पढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होता है ना, जब आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हो तो मेंटली अपने आप स्ट्रांग हो जाते हो। हम क्या करते हैं, प्रबल कर नहीं पाते, उसको स्ट्रांग नहीं कर पाते, क्योंकि जरा सी कोई डिस्ट्रैक्शन आती है फिर उसकी तरफ चले जाते हैं। आज डिसाइड किया कि किताब, हाँ बढ़िया, आज डिसाइड किया कि किताब के 4 पेजेस पढ़ेंगे। पहला पेज पढ़ना शुरू किया, बड़ा अच्छा लगा, आधा पेज कंप्लीट किया, कितनी देर में किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया और हम फटक गए, और 4 पेज तो बहुत दूर की बात है, आधे पेज में सब चीजें छूट गई। Complete it, complete the task, finish it. Try to get into this approach of completion and finishing everything. It's as simple as that. Strengthen your willpower. जितना strengthen करेंगे उतना ज्यादा आप mentally strong बनते चले जाएंगे। Okay? Moving on to next. 1 second. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने बात की थी, एक इम्पैक्ट है सेल्फ विक्टिमाइजेशन एंड सेल्फ पिटी।
मैं आप सबसे कहूंगा, देखिए जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होता है, हर इंसान की जिंदगी में होता है, हर इंसान बहुत ट्रॉमा से गुजरता है। मैं अपनी जिंदगी के ट्रॉमा से गुजरा हूं, आप अपनी जिंदगी के ट्रॉमा से गुजरेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस, स्टॉप 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 सेल्फ विक्टिमाइजेशन, स्टॉप सेल्फ पिटी। क्योंकि अगर आपने खुद को ही बेचारा समझ लिया तो जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि बेचारापन और करेज दोनों ऑपोजिट है। या तो आप बेचारे बन के खुद को बेचारा महसूस करवा के कुकून में रह सकते हैं, या फिर एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लेके, थोड़ा सा करेज लेके, एक्सेप्ट करके चीजों को आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। दोनों में फर्क है। सो खुद को बेचारा महसूस करवाने से, खुद को सेल्फ विक्टिमाइज करने से, खुद को कुकून में बंद करने से कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहा है, आई डिजर्व दिस इन माई लाइफ, आई डिजर्व ऑल द बैड थिंग्स इन माई लाइफ बिकॉज आई लुक लाइक दिस, आई एक्ट लाइक दिस, बिकॉज आई एम लाइक दिस, everyone talks about me like this, so I deserve everything. You do not deserve all that. I'm sorry, you don't. You deserve a much better life. You deserve a much better you. Only if you start valuing and respecting yourself, that's where people will start to value and respect you. आप खुद को बेचारा नहीं समझेंगे, कोई आपको बेचारा नहीं समझेगा। आप खुद को बेचारा समझेंगे, हर कोई आके ऐसे अपना हाथ नीचे रख देगा आपके ऊपर, आपको दबाता शुरू कर देगा, क्योंकि वो भी कहेंगे आप बेचारे हैं। पहले आप मानेंगे, फिर वो सच्चाई में तब्दील होता है। ये ब्रह्मांड ऐसे ही चलता है, पहले आप मानते हैं, फिर वो आपके सामने रेसिप्रोकेट होके आता है। आप नहीं मानेंगे तो रेसिप्रोकेशन नहीं आएगी। ओके? What you say, what you feel, what you believe gets reciprocated in your life absolutely, in every form. If you refuse to believe it, it won't. If you believe something else will start to reciprocate. Okay? Moving on to next. Stop blaming God for whatever wrong has happened in your life. हमने पहले भी बात की है कि भगवान जी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जितना आप उनको दोषी करार करेंगे, उतना खुद को परेशान करेंगे। The energies that you send in this universe will keep getting reciprocated in your life. So instead, एक लाइन है जो आप लिख सकते हैं, you can write it down, very important. Instead of blaming, you can say whatever wrong has happened in your life, just write in inverted commas, I'm here to learn. I'm here to learn my lessons through you. To grow, to succeed, and to evolve in my life. Through you meaning either through the incident or through God or through this universe or through whatever is happening. This you can be anything or anyone. I'm here to learn my lessons through you in order to grow, to succeed, and to evolve in my life. So instead of blaming God, it's better, or instead of blaming the universe, say that I'm here to learn through you, to grow through you, to succeed through you, to evolve through you. क्योंकि अब हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे हमने ब्लेमिंग बंद की, हमने अकाउंटेबिलिटी ले ली कि अब मुझे सीखना है। गलती हुई ना तो सीखते हैं। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, करेज ओरिएंटेड अप्रोच, लर्निंग ओरिएंटेड अप्रोच। लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसका नाम सैग लर्निंग है। करेक्ट? जितने भी हमारे मॉर्निंग के वीडियोस आते हैं ना, उसकी भी एक सीरीज है, तो सीरीज का नाम भी सैग से सीखो ही है। तो सीखना, लर्निंग इज अ पॉजिटिव, करेज ओरिएंटेड, पॉजिटिव ओरिएंटेड अप्रोच, बिकॉज लर्निंग में आप सब चीजों को छोड़ के आते हो ना, एक क्लेंज माइंड से आते हो, एक ओपन माइंड से आते हो कि आज कुछ सीखते हैं, राइट? कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ समझते हैं नया। आप ओपन हो जाते हो जिंदगी के लिए, आप एक्सेप्टिंग हो जाते हो जिंदगी के लिए, आप करेजियस हो जाते हो जिंदगी के लिए, आप पॉजिटिव हो जाते हो जिंदगी के लिए। इसलिए इसका नाम लर्निंग है। इसलिए शेयर एंड ग्रो का मतलब भी क्या है? लर्निंग एंड अनलर्निंग टुगेदर। क्योंकि लर्निंग के बाद एक एडवांस फॉर्म आता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड अनलर्निंग, जिसकी हमने बात की। अनलर्न योर ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स एंड सिस्टम्स, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। करेक्ट? इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, शायद दोबारा उस बात को रिपीट कर देता हूँ कि स्टॉप एनविंग अदर्स, स्टॉप बिकमिंग जेलस ऑफ अदर्स।
Stop becoming insecure with others. Start getting inspired from others. हम बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, जेलसी, एनवी में फंस जाते हैं. जब जब आप इसमें फंसोगे, आपने अपना पूरा नजरिया गलत कर लिया जिंदगी के लिए. आपने पूरा नजरिया खराब कर लिया, नेगेटिव कर लिया. चेंज द पर्सपेक्टिव एंड लाइफ विल चेंज. अगर किसी में कुछ अच्छा दिख रहा है तो क्या हम देख नहीं सकते इसके अंदर ये टैलेंट है, क्या इससे मैं कुछ पिकअप कर सकता हूँ, कुछ अडेप्ट कर सकता हूँ, कुछ ले सकता हूँ, कुछ इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, ताकि मैं उसको अपने अंदर अडेप्ट कर लूं और आगे बढ़ जाऊं. एक मुझे याद है शाहरुख खान ने एक स्पीच दी थी, बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत साल पहले किसी फिल्म फेयर अवार्ड या किसी फंक्शन में. तो 3-4 नॉमिनीज थे, उसमें शाहरुख खान को अवार्ड मिला था. नॉमिनीज कौन थे? गोविंदा, अजय देवगन, अक्षय कुमार और सलमान खान. एंड देन 5 टॉप एक्टर्स, शाहरुख खान. उसमें से शाहरुख को अवार्ड मिला था. एंड लुक एट द पर्सपेक्टिव. नाउ दैट पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सामने वाले ने क्या कहा. He said, "Thank you, I got this award. I'm thankful to my family and XYZ." वो तो उसने कर दिया. उसके बाद he says, "What I'm taking from these nominations is that I will strive to, or I wish, or I strive to dance like Govinda, have an intensity in my eyes like Ajay Devgan, have a stardom or an aura like Salman Khan, and I could fight like Akshay Kumar." So this is changing the perspective, right? The perspective change, मतलब inspiration, कि इसके पास ये अच्छा है, क्या मैं इसके जैसा तो नहीं, इससे ये जो अच्छाई है इसकी अपने अंदर ग्रहण करके उसको बना सकता हूँ कुछ. गोविंदा की तरह तो डांस नहीं कर सकता, लेकिन क्या कुछ इनपुट्स नहीं ले सकता उसके डांस से, जिससे मैं अपने डांस को बेहतर बना सकूं. या अगर अक्षय कुमार इस तरह से फाइट करता, जो 20 साल से मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है, तो मैं अपने तरीके से उसकी कुछ चीज ले लूं और अडेप्ट कर लूं और उसको मोल्ड कर लूं. This is the way I'm talking about. Get inspired. Instead of self-doubting, self-blaming, envy, jealousy, insecurity, कि इसमें ये है, मेरे को तो ये नहीं मिला, देखो उसको ये मिल जाता है, उसको वो मिल जाता है, सब बेकार की चीजें, इससे कुछ नहीं होगा. You just will hamper yourself. The moment you think negative about somebody else, उसको negativity तो बाद में लगती है, पहले यहाँ पे create होती है negativity. The moment you create a negative thought, it starts to germinate here. Feelings and emotions. When your feelings and emotions become negative, then your attitude becomes negative. Your behavior becomes negative. Your belief system becomes negative. Then your perspective becomes negative. Then your destiny becomes negative. It's as simple as that. So it starts from here. Thinking leads to feeling, leads to emotions, leads to belief, leads to attitude, leads to perspective, leads to destiny. It's as simple as that. Itna hi aasan hai. Okay? Number 11. मेंटल स्ट्रेंथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो अक्सर नहीं है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है. कि अगर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का उल्टा करते हैं तो क्या होता है? कोई बताएगा? बोलो अनुप्रिया. 1 सेकेंड, सॉरी, किसने बोला? अनुप्रिया ने हाथ खड़ा किया था. अनुप्रिया बोलिए. So constantly working hard, मतलब No, instant no, gratification नहीं हो. No, instant gratification का opposite बताएं श्रेया. Delayed gratification. Absolutely. Instant gratification का मतलब है जल्दी सब चीजें. ये delayed gratification का मतलब मैं इंतजार करने को तैयार हूं इन सब चीजों के लिए. Always remember, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना जिंदगी में, वो इंस्टेंटली नहीं मिलेंगी. नच बोले की ट्रॉफी पहले दिन जाते ही नहीं किसने प्लेट में परोस के दे दी थी, उसके लिए 6 महीने काम करना पड़ता है. 6ठे महीने 19 जुलाई को, 4 दिन बाद, आज से 19 जुलाई 2015 को जीते थे हम, लेकिन हमारी तैयारी शुरू हुई थी फरवरी में. फरवरी 7th या 10th से हमने रिहर्सल शुरू की थी. फरवरी 7th to 19th जुलाई, कितने महीने हो गए? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 से 6 महीने. 6 महीने रोज डांस, 18 घंटे डांस, रिहर्सल्स, कभी बॉडी टूट रही है, कभी पेन्स हो रहे हैं, कभी एक्स हो रहे हैं, कभी बैंडेजेस लग रहे हैं, कभी पेन किलर्स खा रहे हैं, कभी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कभी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आंसू भी निकल रहे हैं, गिर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं. उसके बाद 19 जुलाई को we were declared winners. 6 months. That basically means for anything to achieve big in life, you will need, fill in the blank. You will need, fill in the blank for me. हाथ खड़ा करके. Patience.
You will need धैर्य, you will need ठहराव, you will need patience. हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा. जिंदगी की सारी परेशानियां इमीडिएटली हल नहीं हो जाएंगी. सब चीजों में समय लगेगा, समय देना पड़ेगा. डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि समय. प्यार किसी से एक दिन में नहीं हो जाता. किसी को देखते हो, पसंद आता है, बातें करते हो, मिलते हो, समझते हो, देखते हो, फिर अचानक से करते 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 कोई ऐसा लम्हा हो जाता है, किसी गार्डन में उसके साथ बैठे होगे और ऐसा लगेगा वाह अब प्यार हो गया. करेक्ट. एक दिन में अमृता से प्यार नहीं हो गया था मुझे. देखते ही आपको अट्रैक्शन होती है, आप मिलते हो, बात करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर अचानक लम्हा ऐसा जिंदगी में आ जाता है, आपको लगता है that you are here to surrender your life with that person. करेक्ट. इट टेक्स टाइम. एक दिन में प्रेसिडेंट नहीं बन जाता ना किसी कंपनी का. एक दिन में वीपी, चांसलर, ये सब नहीं बनते ना. एक दिन में बिजनेस 1000 करोड़ का नहीं हो जाता. करेक्ट. बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारा ठहराव रखना पड़ता है. पेशेंस इज द की टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग. करेक्ट. होमवर्क लिख लो, हाउ टू इंकलकेट पेशेंस इन लाइफ. पेशेंस की डेफिनेशन लिख लो पहले, बड़ी अच्छी है. हमने लिखी थी पेशेंस वाले सेशन में. जस्ट राइट इट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Patience equals to the ability to stay calm and not get angry or agitated or restless in a normal or difficult situation, or when you have to wait for something in a queue, or to teach something to someone when they are not getting it. मतलब क्यू में खड़े रहते हैं ना, जब वेट करते हैं तो उसके लिए पेशेंस चाहिए. किसी को कुछ सिखाने के लिए पेशेंस चाहिए, किसी को कुछ समझाने के लिए पेशेंस चाहिए. The ability to stay calm in any situation of your life is equivalent to patience. तो patience का मतलब है, one second बेटा. Patience का मतलब है the ability to stay calm in every normal, difficult, initial, any situation of your life. फिर चाहे किसी को सिखाना हो, किसी को बात करनी हो, किसी की क्यू में खड़ा होना, कुछ भी हो, बस the ability to stay calm. अब एक और important point बता देता हूँ. एक दो चीजें बात यहाँ पर भी आती है कि हाउ टू बिकम पेशेंट. सर पेशेंस आएगा कैसे जिंदगी में? एक दो चीजें कर सकते हो. किसी को पढ़ाने और सिखाने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है. सो टीच समथिंग टू समवन, whether you teach dance, whether you teach singing, whether you teach painting, whether you teach sketching, whether you teach a maths problem, whether you learn, whether you teach anything to anyone, try this. किसी को कुछ सिखाने के लिए ना बड़ा ठहराव चाहिए होता है यहाँ पर, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, हर बच्चा अलग अलग होता है. उसके लेवल पे आना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे. You need patience for that. Patience is going to be very important aspect of life. Second, listening inculcates a lot of patience. Deep listening. सुने ज्यादा, बोले कम. जितना सुनेंगे ठहराव अपने आप आना शुरू होगा. And number 3, very important point. जल्दबाजी ना मचाएं. मतलब खाना आराम से खाएं, चलें आराम से. टॉक स्लोली, वॉक स्लोली, ईट स्लोली, ड्रिंक स्लोली. अपनी जिंदगी को जो 1.5x या 2x पे चल रही है ना, उसको 1x पे ले आओ, या 1x पे आपके हिसाब से चल रही है तो उसको 0.5x पे ले आओ. मतलब स्टार्ट डूइंग थिंग्स डेलिबरेटली, स्लाइटली, स्लोली. थोड़ा सा आराम से, हर चीज के मजे लेते हुए, हर चीज को एंजॉय करते हुए, हर चीज को रिलिश करते हुए. चॉकलेट खा रहे हो तो रिलिश तो कर लो. चॉकलेट खा के खत्म करके पता नहीं रैपर फेंकने की पहले जल्दी है आप लोगों की. आप समझे? रैपर फेंक लेना, रैपर कहीं नहीं जा रहा. खाना आराम से खाएं, सब चीजें आराम आराम से. तो दिस विल हेल्प डेवलपिंग पेशेंस. एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ. Number 12, let's keep it the last point, or maybe number 13. दो चीजें मैं बता देता हूँ, then we come to तेजस्विनी and अनुप्रिया. I think कुछ पूछना चाहते हैं. मेंटली स्ट्रांग तब हो पाओगे जब जिंदगी में कोई विजन होगा, जब जिंदगी में कोई पर्पस होगा. जब खाली हाथ बैठे रहोगे, कोई विजन नहीं है जिंदगी में, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ करना भी है कि नहीं करना है, तो कुछ इंस्पायर नहीं करता एनी डे. So I keep telling it in every session, find a vision for yourself, find your purpose. Otherwise purpose, vision नहीं मिलता, कुछ तो find करो जो इंस्पायर करे every day कुछ करने के लिए.
ताकि उसकी जद्दोजहद और मशक्कत और तपस्या से गुजरोगे तो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तो मेंटली स्ट्रांग होगे ना। कुछ करोगे ही नहीं तो क्या होगा, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। एंड नंबर 13 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे विजन और इससे पर्पस से रिलेटेड है। देखो जैसे बॉडी एक मसल होती है ना, बाइसेप एक मसल होती है, हम करते रहते हैं तो स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे माइंड भी एक मसल है। जितना ज्यादा इसे ट्रेन करोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा लर्न करोगे, जितना ज्यादा इनबॉक्स में चीजें डालोगे, जितने नए एक्सपीरियंसेस होंगे, उतना ये मसल स्ट्रांग होगा। जितना इसको अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से यूज करने की बात करो, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की यूजेज की बात नहीं कर रहा जो खोखला कर रहा है। क्लियर थिंकिंग से नए एक्सपीरियंसेस डालोगे, नई लर्निंग्स डालोगे, हर चीज अच्छा डालोगे, तो अपने आप ये मसल स्ट्रांग होगी। जब ये मसल स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इम्यूनिटी की बात हो रही थी वो सब ढहनी शुरू हो जाएगी। ऑल योर stress, anxiety, overthinking, depression, everything will start to diminish from your life. And this mind will automatically, after training, becomes a solution-oriented approach mind, where आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का चुटकियों में हल निकालना शुरू कर दोगे। Okay, like a puzzle. All right. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, किस किस को ग्रेसफुल बनना है जिंदगी में? किस किस को ग्रेसफुल बनना है जिंदगी में? चलो, ग्रेस की डेफिनेशन पता क्या होती है? ग्रेस कम्स फ्रॉम इमेंस मेंटल स्ट्रेंथ। यहां पे मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ग्रेस नहीं आएगी। ग्रेस ओनली कम्स फ्रॉम, ग्रेस मतलब क्या होता है? ग्रेस का मतलब ही एक डिमीनर होता है, कामनेस होती है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना, वही इंसान ग्रेसफुल हो सकता है। अगर ग्रेस चाहिए जिंदगी में तो अपने आप को आत्मसंतुलन, आत्मस्थिर और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हम MS धोनी की बात करते हैं तो 2011 वर्ल्ड कप हजारों लाखों लोग उम्मीद कर रहे हैं, बट दैट मैन इज ग्रेसफुल, दैट इज व्हाई मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो ग्रेसफुल नजर आता है ना। चेहरे पे आपको कैसे ठहराव, शांतता नजर आती है, क्योंकि वो सारे प्रेशर को झेल के यहाँ पे आत्मा में समा देता है। बस इसकी भनक भी आपको नहीं पड़ती कि अंदर क्या हो रहा है। द एबिलिटी टू स्टे काम, द एबिलिटी टू हैव अ मेंटल स्ट्रेंथ, द मेंटली स्ट्रॉन्ग despite of everyone expecting anything, despite of all the pressures, I am mentally stable at the moment. Strong mental strength. Okay, that's where grace comes from. GRACE. Okay, wonderful. That ends the session. अब मुझे बताओ, अनुप्रिया और तेजस्विनी कुछ कहना चाह रहे थे। It's already 8:30. See, I told you, मुझे लग रहा था आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा। हाँ जी अनुप्रिया जी। सर आपने जैसे बोला कि है ना, पेशेंस डेवलप करने के लिए कि हम वॉक ड्रिंक स्लोली, बट सर समटाइम्स ऐसा होता है कि व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि दे आर लाइक यू आर ईटिंग सो स्लो, व्हाई डोंट यू ईट सो फास्ट। मतलब सर अब उल्टा ही हो जाता है वो आपके साथ। तो उनको बुलाओ यहाँ पर सेशन में, उनको भी ठीक करते हैं। अरे मतलब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है ना। अब जो बोल रहे हैं लोग, उनके बारे में तो कुछ कह नहीं पाएंगे ना, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको बुलाओ, उनको भी एडमिशन दिलवा दो, यहाँ पे एनरोलमेंट करो, उनको को आओ, गिफ्ट दे दो सेशन, उनको को आओ, थोड़ा सीखो, थोड़ा समझो कि दूसरों को बार बार कब तक कहोगे। यस सर। हाँ, लेकिन बेटा बात वहीं पर आ जाएगी ना। अब हम देखो, जैसे हमने कहा, अब आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास की कंडीशनिंग को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपना रिस्पॉन्स जरूर बदल सकता हूँ। क्या है, अब मेरी वाइफ बहुत फास्ट खाना खाती है 5 मिनट में, लेकिन मुझे कम से कम 20 मिनट लगते हैं। जी सर। अब क्या है ना, फॉर्चुनेटली वो बोलती नहीं है मुझे कि मैं स्लो क्यों खाता हूँ, क्योंकि उसको अपनी समझ है और मुझे अपनी समझ है। आप समझे? लेकिन पॉइंट अगर ये होगा, अगर वो बार बार बोलेंगी तो या तो मैं अपना खाना उठा के कहीं और जाके खाऊंगा, ये भी तो मेरे हाथ में ना। घर में अगर एक कमरे के अलावा अगर दूसरा कमरा भी है, या मैं किचन में चला जाऊंगा, या मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा, हर किसी की अपनी अपनी फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से, तो मेरे पास दूसरा कमरा मैं अपना चला जाऊंगा। लेकिन क्योंकि वो नहीं बोलते तो हम आराम से बैठ के खाते हैं। आप समझे मेरी बात? लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो बेटा रिस्पॉन्स तो हमेशा हमारे हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दूसरों को, यही रास्ता है, या उनको यहाँ बुला लो, अगर उनको नहीं बुला सकते
तो अपना रिस्पॉन्स ठीक कर दो, इतना ही सिंपल है। I can give them a gift कर देंगे एक सेशन की, प्लीज गो एंड हेल्प अदर्स कि शायद उनकी नेगेटिव कंडीशनिंग थोड़ी सी ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज और करना, अगर आप कभी सेशन में किसी अपने परिवार के सदस्य को गिफ्ट करते हैं तो आप मत आना। जी सर। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर आओगे ना तो फिर कोई असर दिमाग में जाएगा नहीं उनके। बड़ा सिंपल है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने आप को कुकून में बांध के रखते हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों के सामने हमें अपनी फॉल्स सेंस ऑफ इमेज के अंदर अटक जाते हैं। हम सभी अपनी फॉल्स सेंस ऑफ इमेज के अंदर अटके पड़े हैं, जो हमने दूसरों को दर्शा के रखी है, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे सदस्य हों, हर किसी ने एक प्रोटेक्टेड सी एक इमेज बना रखी है। जब तक इस इमेज को हम तोड़ते नहीं है ना, जब तक हम ओपन नहीं होते जिंदगी में, जब तक हम सच में नहीं घुसते या इन सब चीजों को ड्रॉप नहीं करते, तब तक यहाँ से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। सर वन मोर थिंग, कि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आपने 1 सेकंड, सॉरी अनुप्रिया, आई थिंक हैंग हो गया था। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो आप? समटाइम्स ऐसा होता है कि सपोज आपने जाकर आपका पार्ट ऑफ मिस्टेक कन्फेस कर दिया, हाँ, आपने कुछ गलत करा और आपने अपना पार्ट ऑफ मिस्टेक कन्फेस कर लिया, तो अदर पर्सन ट्राइज टू ब्लेम द एवरीथिंग ऑन यू, मतलब also makes you feel low about that. Yes. आपकी गलती है। yes, देखो अगर ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छी बात है, अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत सिंपल, अगर आपकी गलती है तो आप माफी मांगो, आपकी गलती नहीं है तो रिलेशनशिप सुधारने के लिए माफी नहीं मांगना। फिर समझे मैंने क्या कहा? yes, ऐसे लोगों से जो बार बार आपको नीचे दबाते हैं, जिनकी अपनी कंडीशनिंग है, उनके लिए कह रहा हूं, हर रूल अलग अलग के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए जो दबाते हैं, तो बड़ा सिंपल है, अगर आपकी गलती है तो आपकी सच्चाई कहती है कि आप माफी मांग लो, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर सामने वाला क्या कह रहा है, देखो आपने जब होता क्या है, हम जब माफी मांग लेते हैं तो खुद को भी माफ करना जरूरी होता है। फिर इसका मतलब ये नहीं है वो अगर एक इंसान 10 बारी आपको सुनाई जा रहा है तो वहां पे उसको रोकना भी जरूरी है। मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली, अब मैं आपको इजाजत नहीं देता कि आप अपना पैर मुझ पर रखें। फर्क है दोनों चीजों में। मैंने गलती की, मैंने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, अब समझदारी आप में होनी चाहिए कि किस तरीके से माफ करना। अगर आप अपना पैर मेरे सर पर रखेंगे तो ये गलत है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देन कम्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड माई सेल्फ वैल्यू। ओके, दैट्स क्लियर। थैंक यू। तेजस्विनी, आप कुछ कहना चाह रही थी? यस, आवाज थोड़ा सा बेटा लो आ रही है। यस, बोलिए। यस यस, क्लियर। Definition of patience, I missed it. Patience is the ability to stay calm in a normal or a difficult situation, or when you have to wait for something in a queue, or you have to teach something to someone when they are not getting it. तो ये जो आखिरी के दो है ना, ये उसके examples हैं कि when you are trying to teach something to someone. And I think this definition is not also created by me. It is by Google when we were doing a session on patience. I think the Google helped us to understand this, but it is simple. तो इसका क्रेडिट गूगल को जाता है। एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हाँ, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सर आ रही है आवाज? यस यस, बोलिए। आज एक इंसिडेंट हुआ था, वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम का मेरे साथ ही। मेरे एक पुरानी फ्रेंड से मिली, तो आज ही मुझे बोलती है कितना लाइफ में करियर पे फोकस करेगी, शादी नहीं होगी अच्छे बंदे से और उसके बाद अगर 2-3 साल और ले लिए तो से बुढ़ा ही मिलना है कोई। तो अच्छे लड़के तो हाथ से चले जाते क्योंकि सब यंग लड़कियां ही चाहिए रहती फिर तू क्या करेगी देख ले, क्योंकि हमारी तो शादियां हो गई, हमारे तो बच्चे भी हो गए। वंडरफुल। तो उनसे पूछिए सॉरी नहीं, गलत हो जाएगा। आई वोंट से एनीथिंग, पर्सनल हो जाता है। नहीं पर्सनल हो जाएगा। इट्स नॉट करेक्ट ऑन माय पार्ट। इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, बेसिकली क्या होता है ना, देखो बात सही है आपकी कि ये ओल्ड पैटर्न बिलीफ सिस्टम है। क्या होता है ना, उनकी अपनी कंडीशनिंग है, वो अपनी 20-25-30 साल की कंडीशनिंग से आ रहे हैं। शादी ये सिर्फ शायद हमारे समाज में ना शादी को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है, मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा।
आपके अपने अस्तित्व से भी ज्यादा। तो हमें समझना जरूरी है, शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप है दैट कम्स फॉर फ्यू इयर्स, राइट? 20 years, 25 years, 30, जिसकी डिमाइस, सेपरेशन, डिवोर्स, जो भी सब चीजें मिला के हम 20-25 साल के एक रिलेशनशिप के पीछे जिंदगी भी इसलिए बिताई जाती कि कब शादी करेंगे। बचपन से शादी मतलब हमने अपने आप को ना बहुत ज्यादा वन पैटर्न अप्रोच में डाल लिया है, और उससे क्या हो रहा है, हम अपनी जिंदगी के पर्पस, अपने विजन, अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब, अपने एस्पिरेशन, सोल की कॉलिंग, सब चीजों को साइड में रख देते हैं, और एक कंफॉर्मिटी है टू द सोसाइटी, दैट्स इट, कि हम सोसाइटी को कंफॉर्म करें किसी चीज में। CON, म्यूट, अच्छा मेरी तरफ से आ रहा है क्या? तो कंफॉर्मिटी है टू द सोसाइटी, दैट्स इट, सो दैट वी कैन बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। अगर शादी नहीं होगी तो शायद हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो शादी नहीं, 1 सेकेंड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं। क्या वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है या जी नहीं रहे हैं? सब चीजें हैं, बस हमने एक बांध लिया और कुछ नहीं है। तो वो अपनी कंडीशनिंग से बोल रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ ओके। अगर कभी कभी कोई इंसान नहीं समझ पाता जिंदगी को, तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते, तो जब वो समझेंगे जिंदगी को, समझ जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तेजस्विनी, आई थिंक बेटा इधर म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि आपकी तरफ से नॉइज वो अटक रहा है कहीं बीच में, और मे बी यू कैन कम एंड लीव एंड कम बैक अगेन। ओके Okay, everyone, 1 second. All the points are clear to everyone. किसी को कुछ पूछना है? 1 second. Tarale ji, any new participants? 1 second. Hold on, Tarale ji. 1 second. Akshita, beta, you want to ask anything? All clear to all the points, everyone? 1 second. Tejaswini, 1 second. Can you come back again, beta? Leave, because वो hang हो गया वहां पर. She left. Is it? से आ रही है आवाज? Okay, clear. She's going to come back again. Anyone wants to, I think, Akshita, Netra, anyone, are all okay? All clear? All the points to everyone? So, Akshita, bolo. So you were talking about changing the belief system and all, right? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने convenience के लिए, like even if those belief systems are right, हमारे कन्वीनियंस के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी ट्राई टू चेंज इट। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि लाइक कौन से इसमें आई शुड चेंज इट एंड व्हिच वन शुड आई फॉलो? एग्जांपल के तौर पे बताओ, जैसे अनम्यूट योरसेल्फ। आई कांट थिंक ऑफ वन राइट नाउ। देखो बेटा, पता क्या है, बात सही है, मैं समझता हूँ आपकी। हम कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें, इस पूरे ब्रह्मांड में ना, जब से एवोल्यूशन हो रहा है, हम कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें बदलते चले जाते हैं। कि अगर हमारे ना जो पुराने बिलीफ सिस्टम से आज से 100 साल पहले, अब वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? क्योंकि अब हमें अपनी कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम उसको बदलते चले जाते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं देख सकते, चाहे हम कन्वीनियंस से बदलें चाहे हम इनकन्वीनियंस से बदलें, बदलना ज्यादा जरूरी है। मतलब किसी भी चीज पे पक्का टिके नहीं रहना, इन द सेंस किसी भी एक बिलीफ सिस्टम को पक्का नहीं मान लेना। क्योंकि क्या होगा ना, जैसे एवोल्यूशन होगा, जैसे टेक्नोलॉजीज बदलेंगी, जैसे चलो मैं एक थोड़ा सा बोल्ड एग्जांपल देता हूँ हाइपोथेटिकली, लेकिन हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। एक टाइम था premarital sex was supposed to be a cardinal sin and taboo, but it does not happen these days, right? It has become a normal part of a relationship. People have relationships, people have intimacy, and then they proceed to their life partnership. Correct? So हमने पहले वाला भी तकियानुसी था, शायद अब वाला भी तकियानुसी। हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते चले जाते हैं, या एवोल्यूशन के हिसाब से बदलते चले जाते हैं। बदलना ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आप बदलते चले जाएंगे, हम क्या करते हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम को लेंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर हम उसकी जगह कोई नया लेंगे। लेकिन बेटा 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद ये नया भी पुराना हो जाएगा, फिर इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अटकना नहीं है कहीं किसी भी एक बिलीफ सिस्टम में, क्योंकि एवोल्यूशन के साथ जब अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली यू कीप अपग्रेडिंग। सो जो इस नए बिलीफ सिस्टम को आज पकड़ लोगे, हम क्या करते हैं, नए बिलीफ सिस्टम को पकड़ लेते हैं, हम लगता है ये बढ़िया है, ठीक है, अब ये बढ़िया है तो इसमें अटक जाओ। अटकना इसमें भी नहीं है, शायद यहां से कुछ और निकलेगा, फिर कुछ और नया आएगा। सो हर बारी अपने आप को इवॉल्व करते चले जाना है। ओके, जो भी बिलीफ सिस्टम आपको अटका दे, जो भी बिलीफ सिस्टम आपको पेन दे, जो भी बिलीफ सिस्टम आपको फंसा दे, जिस बिलीफ सिस्टम की वजह से
आप आगे ना बढ़ पाए, इवॉल्व ना हो पाए, वो सारे ओल्ड पैटर्न हो गए ना। अब जब नया पुराना हो जाएगा तो पुराने को फिर तब भी छोड़ना पड़ेगा। ओके हाँ जी साहिल जी बोलिए। इट्स ऑलरेडी 8:35, 40 आई हैव सर टू लीव समवेयर। छोटा सा पॉइंट आई वांट टू मेक, जो आपने बोलिए। ये बात अभी जो समझाई ना, इसमें एग्जांपल मैं एक बहुत छोटा सा दूंगा जिससे मे बी अक्षता वुड बी बेटर वो क्लियर। सर जैसे घर में हम लोग पूजा करते हैं समटाइम्स, मतलब एक टाइम था जिस समय लोग बड़ी बड़ी पूजा दिया वगैरह लगाते हैं, मतलब हम इस चीज में या उस दकियानुसी ख्याल में फंस जाए, मान लो अगर दिया बुझ गया, समटाइम्स वी पिक इट अप विद, कई बार ना सर गीले हाथों से हम दिए की लॉ बना देते हैं। तो मेरे साथ क्या होता था सर, कई बार जलाया तो जला नहीं कंटिन्यूसली, तो मैंने आपके साथ रह के ये लर्न किया है, आई वांट टू शेयर इट विद यू आल्सो, कि वो पर्टिकुलर बत्ती बदल दो ना, जस्ट चेंज दैट पर्टिकुलर बत्ती, बिकॉज वो नहीं जल रही है तो वी हैव टू जलाना है ना, वो करो। इसमें अटकने की जरूरत नहीं कि वो नहीं जलेगा तो काम नहीं होगा, एटलीस्ट यू शुड मूव फॉरवर्ड। पाप लगेगा, पाप लगेगा, एग्जैक्टली पाप लगेगा, वो नहीं सोचना दिया बुझ गया तो मतलब पाप लगेगा सर। वो पहले होता नहीं था, क्योंकि सास भी कभी होती, दिया बुझ गया तो वो हो गया सारा काम खत्म, तो वो नहीं होना है। ये सब ना कहानियां अच्छी हैं, क्योंकि सारी स्टोरीज फिक्शन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, थैंक यू साहिल। ये कहानियां अच्छी हैं कि टीवी में दिखाने के लिए अच्छी है, फिक्शन अप्रोच में अच्छी है, बट ये अगर जिंदगी को कहानियों में उलझा दोगे तो हकीकत नजर नहीं आएगी, और कहानियों में उलझ के स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग। कहानियां अलग होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, महसूस करने में अच्छी लगती है, इमोशंस में अच्छी हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी अलग है, जो सामने है वो जिंदगी है, जो दिमाग में है वो कहानियां है। ओके हाँ जी तराली जी, you wanted to say something and I'm wrapping up after that and I'll see you in the next session। हाँ जी तराली जी बोलिए। For me, I think mental strength कम हो जाते हैं जब we are getting dominated constantly. Sorry, when you are dominated, we are getting dominated by others. Yes. So बात वहीं पर आती है जो हमने कहा था, when you become a part or a product of negative conditioning or are surrounded in the negative environment. Negative environment means of course domination. Negative environment means physical, emotional assault of any kind, जो भी है, या फिर mental torture of any kind, where जहाँ पे आपको बार बार चीजों को कंट्रोल फ्रीक नेचर में बताया जाए कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। Any kind of negative environment creates mental weakness. Absolutely. Thank you. Wonderful. All right, everyone. Thank you so much. Can we recite all the points? All the points. तो मैं ही सबसे पहले बोल देता हूँ, ताकि टाइम थोड़ा कम है। आप सब एक बार टैली कर लीजिए। Wonderful. Thank you, Sahil, for reminding. Number 1, stop resisting, start accepting. Number 1 is stop resisting, start accepting. Number 2, stop reacting, start responding. Number 3, डिस्क्रिप्शन आप सभी के पास है इसकी, करेक्ट, मैंने बता दिया है, वन लाइनर्स आप लिख सकते हैं। ऑल्सो गिव मी 2 participants who will write it and send it to Gopi ma'am so that we can also share in the broadcast list to everyone. कौन से 2 लोग हैं जो लिखेंगे? तेजस्विनी, पिछला वाला तो दिया नहीं है, नया वाला क्या दोगे? दिया ना सर, दिया ना, मैम को आज ही दे दिया। ओके चलो तेजस्विनी and one more person. हाँ, one more person. कौन? अक्षता, are you writing it out? आपने लिखे सारे पॉइंट्स? ठीक है, तो आप अक्षता और आप तेजस्विनी दोनों लिखेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। लिख के अगर आप वर्ड फाइल बना के दे सकते हैं तो बेटर है, लिख के भेज दीजिए, तो आपका मैच करके हम दोनों का, ताकि किसी का कोई मिस ना हो जाए, हम फिर सभी पार्टिसिपेंट्स को भेज देंगे, सो दैट दे कैन आल्सो टैली विद देम। ओके वंडरफुल। सो अक्षता एंड तेजस्विनी, प्लीज डू इट एंड सेंड इट टू गोपी मैम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। साहिल, म्यूट योरसेल्फ बेटा, 1 second। Number 3, change your perspective. जैसे हमने पर्सपेक्टिव की बात की, फ्रॉम लुकिंग एट द प्रॉब्लम टू लुकिंग एट द पजल। हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की बात की थी, एग्जैक्टली वही है कि पर्सपेक्टिव चेंजिंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू पजल। नंबर 4, बिगिन टू डिसआइडेंटिफाई विद योर ओल्ड पैटर्न बिलीफ, जो हमने बात की है। नंबर 5, स्टॉप ब्लेमिंग, rather start taking accountability of your life, full accountability. Number 6, stop getting tempted so easily, no instant gratification. Number 7, willpower, strengthening your willpower is extremely important for mental strength. Number 8,
No more self-pity and self-victimization. No becharapan. Number 9, stop blaming God or universe. इसी के साथ हमें लिखवाया था, I am here to learn my lessons through you, to grow, to succeed, and to evolve in my life. Inverted commas में. Number 10, stop feeling insecure and envying others. No jalan, no envy, rather get inspired. जो शाहरुख खान का example था. Number 11, inculcate patience in your life. जिंदगी की मुश्किल चीजों में ठहराव जरूरी है. ठहराव की explanation आपके पास है. Definition: the ability to stay calm and not to get angry or agitated or restless in a normal or difficult situation, or when you have to wait for something in a queue or teach something to someone when they are not getting it. That is the definition of patience. How to become patient in life? Slow down on purpose. Walk slowly, talk slowly, eat slowly, and listen more and talk less. जितना ज़्यादा सुनेंगे, it will help to become more patient. एक और पॉइंट था, टू डेवलप पेशेंस. मैं भूल रहा हूँ, तीसरा कोई पॉइंट था, कोई मुझे बताएगा पेशेंस के लिए? हाउ टू बिकम मोर पेशेंट. हाँ जी, मीनाक्षी जी बताएं. Have a vision and a purpose in life. नहीं, पेशेंस में एक और पॉइंट, 3 चीजें बताई थी. हाउ टू बिकम मोर पेशेंट अभी मैं भी नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. Teach something to someone. Yes, very important. Teach something to someone. Teaching always helps to become more patient in life. Wonderful. Thank you, Sahil. Number 12, find your purpose or create a vision for your life. Vision inspires you to become mentally strong each day. Number 13, remember, mind is like any other muscle. जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा mentally strong हो जाएंगे. And not number 14, but overall, very, very important to understand, if you want to be graceful in life, then you have to become mentally strong. Okay? सबने लिख लिया? Clear to everyone? Wonderful. All right, everyone. Thank you so much for coming. It was wonderful having you here and understanding and interacting with you. Take care of yourself, and I will see you back again in the next sessions. Okay? Thank you so much. Take care of yourself. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.